ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। இந்த நல்ல நாளுக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி हम इस अच्छे दिन को परमेश्वर को धन्यवाद देकर நம்முடைய ஆண்டவர் கிருபையாக அவர் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से जीवन दिया है। இந்த வாரத்தில் அவர் நம்மளை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். इस हफ्ते में वो हमें लेकर आया है। நாம் அதை நினைத்தவர்களாக याद करते हुए நாம் முழு இருதயத்தோடு கூட हम पूरे हृदय से தேவன் நம்மை துதிக்கலாம், परमेश्वर की स्तुति करेंगे, நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। இந்த நாளில் इस दिन में கர்த்தர் நம்முடைய எல்லா ஜெபத்தை அவர் கேட்கிற தேவன், परमेश्वर हमारी सब प्रार्थना को सुनता है, நம்முடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவன். हमारी प्रार्थना को उत्तर भी देता है। எத்தனையோ துன்பங்கள் இந்த உலகத்துல வந்து கொண்டு இருக்கிறது, इतने परेशानी संकट आज के दिन में है, எத்தனை பாடுகள் நெருக்கங்கள் வியாதிகள் இந்த உலகத்துல வந்து கொண்டு இருக்கிறது. इतनी तकलीफें बीमारी आज के दिन में है, ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை அற்புதமாக நம்மை நடத்தி கொண்டு வருகிறார். लेकिन परमेश्वर में अद्भुत रीति से लेकर आ रहा है। அவர்தான் நமக்கு உன்னதமானவர், कोई हमारा परम प्रधान है, அவர்தான் நமக்கு உறைவிடமா இருக்கிறார். कोई हमारा छिपने का स्थान है। நாம் அவரை உயர்த்துவோம், हम उसकी ऊंचा करेंगे, நாம் அவரை வாழ்த்துவோம், हम उसकी अभिवादन करेंगे, நாம் அவரை வணங்குவோம். उसकी हम दंडवत करेंगे। நாம் ஒரு பாடல் வழியாக इस गीत के अनुसार சோதர நம்ம ஜெப நிலைமையில இருந்து प्रार्थना की स्थिति में ஜெபத்தை நம்ம रहकर ஆரம்பிக்கலாம். हम प्रार्थना शुरू करते हैं। தோடு உம்மை துதிப்பேன், உன்னதமானவரே, உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன், அதிசயமானவரே. முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன், உன்னதமானவரே, உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன், அதிசயமானவரே. உன்னதமானவரே, என் உறைவிடம் நீர்தானே. உன்னதமானவரே, என் உறைவிடம் நீர்தானே. உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன், உம்மை போற்றுகிறேன். உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன், உம்மை போற்றுகிறேன். இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன், உன்னத
உரைப்பேன் அதிசயமானவரே. எழுந்தருளும் என் ஆண்டவரே, எதிரி கை ஓங்க விடாதேயோ. எழுந்தருளும் என் ஆண்டவரே, எதிரி கை ஓங்க விடாதேயோ. எதிரியின் கை ஓங்க விடாதேயோ. எதிரியின் கை ஓங்க விடாதேயோ. உன்னதமானவரே, என் உறைவிடம் நீர்தானே. உன்னதமானவரே, என் உறைவிடம் நீர்தானே. உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன், உம்மை போற்றுகிறேன். உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன், உம்மை போற்றுகிறேன். உன்னதமானவரே, हमारे परम प्रधान, உயர்ந்தவரே, ऊंचाई में रहने वाले, உம்மையை நாங்கள் போற்றுகிறோம் ஐயா. हम केवल तेरे ही हम उपासना करते हैं, உம்மையை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஐயா. हम तेरी ही स्तुति करते உமது हैं, நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் தகவனே. तेरे नाम को ही हम ऊंचा करते हैं। ஒடுக்குல படுகிறவருக்கு जो जो तकलीफ में रहने वालों को அடைக்கலமா இருக்கிறீர் ஐயா. आप शरण स्थान हो, ஆண்டவரே, எழுந்தருளும் ஆண்டவரே. उठ हो जाओ परमेश्वर, எதிரியின் கை ஓங்க விடக்கூடாது ஐயா. विरोधियों के हाथ न उठ सके, ஆண்டவரே, உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் தகப்பனே. हम केवल आपकी ओर देख रहे நீர் हैं। எங்களுக்காக யுத்தம் செய்கிறவரப்பா. आप हमारे लिए युद्ध कीजिए, எங்களுக்காக நீர் போராடுகிறவர் ஆண்டவரே. आप हमारे लिए युद्ध करने वाला எங்களுக்காக परमेश्वर, ஆண்டவரே சத்துரு முன்பதாக எங்களை உயர்த்தி வைக்கிற தேவன் ஆண்டவரே. शत्रुओं के सामने आप हमें ऊंचा करते இந்த हो। காலை வேளையில इस सुबह के இது समय அப்படியே செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். आप ऐसे ही कीजिए। எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हमसे अधिक प्रेम करने वाले पिता आपको धन्यवाद। நீர் வானத்திற்கு பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் படைத்தவர். आप आकाश और पृथ्वी का अधिकार पाए हो। வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதபடி சொன்னவரே. स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी आसन कहने वाले, நாங்க உம்முடைய பாதபடியில் நாங்க வந்திருக்கிறோம் ஐயா. हम तेरे आसन के पास आए இந்த हैं। ஓய்வு நாள் ஆராதனையை इस विश्राम दिन की आराधना பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை வழிநடத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். पवित्र आत्मा आप हमें मार्ग நாங்கள் இந்த दिखाइए। ஆராதனை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ये आराधना कैसे चलाना चाहिए, ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு உம்முடைய ஞானத்தினால் எங்களை நீர் நிரப்பும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். आप अपने ज्ञान से हमें भर दीजिए। இந்த வல்லமை நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்தத்தக்கதாக, आपकी सामर्थ्य नाम को ऊंचा உம்முடைய करने के लिए, கிருபையை நினைத்து நாங்கள் பாடத்தக்கதாக, आपका अनुग्रह को याद करके गाने के நீர் लिए, செய்த நன்மைகள் நினைத்து உம்மை நாங்கள் புகழத்தக்கதாக, आपने किया भलाई को याद करके आपका ही नाम ऊंचा எங்களை करें। அபிமனதான கிருபைகளை தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். इस प्रकार अनुग्रह को हमें दीजिए। இந்த மாசத்தின் கடைசி வாரத்துல நாங்க வந்திருக்கிறோம் ஐயா. इस महीने के आखिरी हफ्ता में हम आए हैं இன்னும் இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்குள்ளாக और कुछ ही दिन இந்த में ஜூலை மாதத்தை நாங்க கடக்க போகிறோம் ஐயா. ये जुलाई महीना हम पार करने ஒரு जा रहे புதிய हैं। மாசத்துக்குள்ளாக நாங்க பிரவேசிக்க போகிறோம் தகப்பனே. हम एक नए महीने में प्रवेश करने जा रहे இந்த हैं। ஜூலை மாசம் முழுவதுமாக ये जुलाई महीना पूरा இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்குமாக इस हफ्ता के समय எங்களை तक நீர் பாதுகாத்த கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. आपने हमें रक्षा किया, इसके लिए धन्यवाद। எங்கள் மேல் அன்பு வைத்தீரே, आपने हम पर प्रेम रखा, எங்களுக்கு ஒரு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறீரே. आपने हमें जीवन दिया। அதை எண்ணி நம்மளாமே நாங்கள் துதிக்கிறோம். तो याद करके हम केवल आपको உம்மை धन्यवाद நாங்கள் देते हैं। பாடுகிறோம் ஐயா. हम गीत गाते இந்த हैं। ஆராதனை துவக்கம் முதல் முடிவு மட்டுமாக इस आराधना शुरुआत से अंत तक உம்முடைய பிரசன்னத்தினால மகிமையினால நிரப்பும்படியாக செபிக்கிறோம். आपकी प्रसन्नता और महिमा से हमें भर दीजिए। எல்லா தடைகளை உடைக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். सारे रुकावट को तोड़ दीजिए। தேவ தூதர்கள் உற்ற ஆராதனையை மாற்றும்படியாக செபிக்கிறோம். स्वर्ग परमेश्वर स्वर्गदूत झुककर देखने वाले आराधना समर्पण பரலோக விரும்புகிற ஆராதனையை மாற்றி தாங்கப்பா. स्वर्ग चाहने वाला आराधना हमें बना
எங்களை कीजिए, பரிசுத்தப்படுத்துவீராக. हमें पवित्र कीजिए। பரிசுத்தம் இல்லாமல் தரிசிக்க யாரால முடியாதே தகப்பனே. पवित्र के बिना कोई आपको देख नहीं எங்களை पाएंगे। குறை குற்றங்களை மன்னிங்க. हमारे गुनाह और पाप को क्षमा உம்முடைய कीजिए। கிருபைக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை மன்னிங்கப்பா. आपके अप्रिय कार्यों को क्षमा எங்க कीजिए। ரத்தத்தாலே மறுபடியும் இன்னும் கழுவும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். फिर से आपके पवित्र लोक समेत शुद्ध कीजिए। யார பங்குகளோட பிள்ளாரை பிள்ளை ஆசீர்வதிப்பீராக. इस आराधना में भाग लेने वाले सभी को आशीष कीजिए। விசேஷித்த வல்லமையினால் பிள்ளைகளை நிரப்புவீராக. विशेष एक सामर्थ्य से भर दीजिए। பிள்ளைகளுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதங்கள் கடந்து வரும்படியாக செபிக்கிறோம். अपने बच्चे को सब आशीषें मिल जाए। ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையினால பிள்ளைகளை நிரப்புங்க தகப்பனே. आपकी तेज से अपने बच्चों को भर दीजिए। எங்களோடு உம்மை ஆராதிக்கத்தக்கதாக, हमारे साथ आराधना எங்களோடு करें। தொழுது கொள்ளத்தக்கதாக हमारे साथ आपको दंडवत இந்த करें। பிள்ளைகளுக்கு அடிப்படையான வல்லமைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். ऐसा एक सामर्थ अपने बच्चों को देने के लिए இந்த आपसे பாடலை படிக்கும் போது जब एक गीत गाते समय ஆராதனை வேளையிலேயே आराधना के समय எல்லா में கட்டுகள் உடைவதாக, सारे बंधन टूट जाए, சோர்வுகள் மாறுவதாக, सारे कमजोर निकल जाए, அசதிகளை மாற்றும்படியாக செபிக்கிறோம். सब आलसपन को दूर कीजिए, சத்துருவின் வல்லமைகள் எல்லாம் நிர்மலமாக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். शत्रु के सामर्थ्य को आप नाश कीजिए। ஆண்டவருடைய எல்லா கரத்திலும் நம்முடைய சமூகத்தை அர்ப்பணிக்கிறோம். परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करते हैं। ஒவ்வொரு பகு தேவக்கரை இருக்கட்டும். हर एक भाग में आपका हाथ रहे। நீர் எங்களோடு கூட இருமையா. आप हमारे संग உம்முடைய रहिए। சமூகம் என்பா இப்பொழுது இங்கு இருக்கட்டும் ஐயா. आप हमेशा हमारे आगे चलिए। தேவனாம் மகிமைப்படட்டும். परमेश्वर के नाम में ना हो। படிக்கிற எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவீராக. गीत गाने वाला हमें पवित्र कीजिए, உலகத்தில் எங்களை பலப்படுத்துவீராக. हमें बलवंत कीजिए, பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. बड़े काम कीजिए। எல்லா விதமான காரியமும் பொறுப்பான கருள் தருகிறோம். सारे कार्यों को आपके हाथों में समर्पित करते இயேசுவின் हैं। மூலம் ஜெபம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, ஆமென். आमीन। हम एक तमिल गीत को गाकर அதற்கு பிற்பாடு இந்தி பாடலை படித்து தேவநாமத்தை நம்ம உயர்த்தி நம்ம மகிமைப்படுத்துவோம். उसके बाद हम हिंदी गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। முதல்ல தமிழ் பாடலை படிப்போம். पहला तमिल गीत गाएंगे। அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க வந்து இருக்கிறோம், தேவ வீட்டின் நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து இருக்கிறோம். இந்த பாடலை படித்து நம்ம தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம், உயர்த்துவோம். Jesus. பிரவேசிக்க வந்து நிற்கிறோம், தேவ வீட்டின் நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து நிற்கிறோம். அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க
பலியாக மாறிடவே மறுரூபத்தில் இதயத்தை தந்தீரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே மறுரூபத்தில் இதயத்தை தந்தீரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூட வந்தோம் யெகோவா தேவனையே துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுவையே ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூட வந்தோம் யெகோவா தேவனையே துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுவையே நன்மை செய்தவனே நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோமே நன்மை செய்தவனே நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோமே என் காணிக்கை உம் கரங்களிலே உற்சாகமாய் விதைக்கிறோமே என் காணிக்கையை உம் கரங்களிலே உற்சாகமாய் விதைக்கிறோமே ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூட வந்தோம் யெகோவா தேவனையே ஆமென் துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுவையே ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூட வந்தோம் யெகோவா தேவனையே துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுவையே துதிகன மகிமையுமே முழு மனதோடு செலுத்துவோமே துதிகன மகிமையுமே முழு மனதோடு செலுத்துவோமே சம்பூரண ஆசீர்வாதங்களால் திருப்தியாய் அனுப்பிடுமே சம்பூரண ஆசீர்வாதங்களால் திருப்தியாய் அனுப்பிடுமே ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூட வந்தோம் யெகோவா தேவனையே துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுவையே ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூட வந்தோம் யெகோவா தேவனையே துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுவையே ஆமென் ஹalleluya நாம் இந்திய பாடலை படிக்கலாம் हम एक हिंदी गीत गाएंगे கர்த்தர் இந்த பாடலர் உள்ளத்தை இடைப்படுவாராக परमेश्वर इन गीतों के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा प्रभु परमेश्वर राज करता सारे प्राणी स्तुति गाओ இந்த பாடலை राज करता सारे प्राणी स्तुति गाओ प्रभु परमेश्वर राज करता सारे प्राणी स्तुति गाओ आओ करे आराधना उसकी
की स्तुति करो सारियों मीरा से प्रभु की स्तुति करो जय हो जय हो जय हो जय हो आमेन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इतना समय
हम परमेश्वर के लिए गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति किए। अभी हम लोग थोड़े समय परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर की आराधना बोले तो परमेश्वर के सम्मुख में आकर अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल देना, परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताने का समय, परमेश्वर से बातचीत करने का समय, परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल कर, हमारे सारे गलतियों को परमेश्वर के सम्मुख में डालकर, हमारे सारे कमियों को परमेश्वर के सम्मुख में डालकर, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भूल कर हम परमेश्वर के सम्मुख में थोड़े समय, ये समय केवल हम और परमेश्वर, हमारे बीच में कोई और नहीं, कोई मनुष्य नहीं, बोलने वाला मैं भी नहीं, मेरे बीच में मेरा जो आराधना है मैं और परमेश्वर, आपकी जो आराधना है उसमें आप और परमेश्वर, या हमारे बीच में किसी मनुष्य या किसी कार्य के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वही सच्चाई की आराधना, जो आराधना के बीच में हमारे दिल और दिमाग में हमारी जो कुछ कमी या समस्या, वो सारे कार्य भी हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। उसको सब कुछ भूल कर हम जो परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को सौंपते हैं, वो सच्चाई की आराधना। अभी हम लोग थोड़े समय अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर के सम्मुख में अपनी सर को झुकाकर परमेश्वर के पास आकर हे परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर इस जुलाई महीने में, इस जो अंतिम हफ्ते में, इस जो अंतिम दिनों में जो जुलाई महीने के परमेश्वर हमें लेकर आया है, ये 6 महीना परमेश्वर संभाला है और ये 7वां महीना भी परमेश्वर अभी तक कोई भी कमी के बिना, कोई भी समस्या के बिना, हमारे जीवन में कितनी सारी समस्याएं और कमी रहेंगी तो भी परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें चलाया है। हम सब जन ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से इस साल की आरंभ से लेकर अभी तक हमें चला कर लेकर आया है। इस साल के आरंभ में कितने सारे लोग थे, हमारे पहचान के भी बहुत सारे लोगों को हम खो दिए होंगे, या ये हमारा देश ने अनेक लोगों को खोया है। इस जो समस्या हमारे देश में या पूरा संसार में चल रहा है, अनेक लोग इस कोरोना वायरस के द्वारा पीड़ित हो गए हैं, अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है, अनेक लोग इसके जकड़ में आ गए हैं। लेकिन परमेश्वर आज आप और हमको अपनी जो जीवन को देकर, परमेश्वर अपनी अनुग्रह को देकर, परमेश्वर अपनी दया को देकर, परमेश्वर अभी तक हमें चला कर आया है। उस महान परमेश्वर की हम थोड़े समय महिमा कर उसकी धन्यवाद कर उसकी आराधना करेंगे। हम सब जन मुंह खोलकर आराधना करने वालों के समीप परमेश्वर रहता है। मुंह खोलकर स्तुति करने वालों के समीप परमेश्वर रहता है। परमेश्वर आज तुम्हारे समीप, अगर हम सब जन एक कलीसिया में, एक जगह में न जुड़ पाए तो भी, फिर भी परमेश्वर इस जो वीडियो के द्वारा हम सबको एक मन के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने कितना अच्छा मौका दिया है। अनेक लोगों को ये मौका भी नहीं मिला है। अनेक लोग न कलीसिया न परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी अनेक प्रकार की स्थिति में वो लोग हैं, लेकिन फिर भी आज आप लोग घर में रहते हुए परमेश्वर की आराधना एक मन के साथ कर पाए, ऐसी परमेश्वर स्थिति हमें बना कर दिया है। कितना अच्छा परमेश्वर है। हम सब जन उस बड़े परमेश्वर को हमारे हृदय की गहराई से हम सब जन उसकी स्तुति करेंगे। हम सब जन उसकी स्तुति करेंगे। स्तुति करते करते, धन्यवाद करते करते हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे कार्यों में परमेश्वर की अनुग्रह और दया दिन भर बढ़ती रहती है। और हमें इस संसार में जीवित रहने के लिए, इस संसार के कार्यों से बच निकलने के लिए हमारी सामर्थ नहीं, हमारे कोई बल नहीं, हमारी धन दौलत नहीं, लेकिन वो केवल और केवल परमेश्वर की अनुग्रह, वो परमेश्वर की अनुग्रह को चाहते हुए, वो परमेश्वर की अनुग्रह को हम लोग प्यास के साथ चाहते हुए हम सब जन परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। हम सब जन परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। हम सब जन मुंह खोलकर परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 करके मुंह खोलकर हम सब जन कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो।
मेरा प्रेमी यीशु ही की महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो। अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको, राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए, राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरा प्रेमी यीशु ही की, मेरा प्रेमी यीशु ही की महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो। आज और कल एक साथ तू है, फिर आने वाला राजा। आज और कल एक साथ तू है, फिर आने वाला राजा। तेरा नाम हो ऊंचा, तेरा राजा वे, तेरी मर्जी पूरी हो। तेरा नाम हो ऊंचा, तेरा राजा वे, तेरी मर्जी पूरी हो। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरा प्रेमी यीशु ही की, मेरा प्रेमी यीशु ही की महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो। हम सब ऐसे ही अपनी आंखों को झुकाकर, अपने सर को झुकाकर, जैसे हमने कहा परमेश्वर की महिमा हो, महिमा तेरी हो, महिमा केवल हमारी परमेश्वर की। हमारी जीवन जो है दिन भर दिन हर एक पल में परमेश्वर की महिमा करती रहना चाहिए। आज हो या कल, हर एक दिन परमेश्वर के साथ हम लोग वक्त बिताते हुए परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। जिस तरह से हमने इस गीत को गाया, परमेश्वर ने हमें राजा के रूप में और परमेश्वर हमें लेवी के दल में चुनकर परमेश्वर ने हमें अपने लिए परमेश्वर ने अलग किया है। परमेश्वर ने आप और हमको इस संसार से अलग कर एक राजा के रूप में और लेवी के रूप में परमेश्वर ने आप और हमको इस संसार में रखा है। कितना महान परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर। परमेश्वर हमें इस संसार से ऐसे ही अलग नहीं किया। परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर हमें ऐसे ही इस संसार से अलग नहीं किया।
परमेश्वर ने अपना लहू का मोल देकर आप और हमको परमेश्वर ने इस संसार से हमें अलग किया है। कितना अच्छा महान परमेश्वर। हम सब जन उस परमेश्वर को एक बार हम सब जन धन्यवाद करेंगे हृदय की गहराई से। परमेश्वर, मुझे इस संसार से अलग करने के लिए धन्यवाद। मुझे इस एक लेवी के रूप में, एक याजक के रूप में हमें अलग कर आपके राज्य के लिए आपने हमें चुना है, इसलिए धन्यवाद। और आज और कल परमेश्वर फिर आने वाला राजा हमें आकर अपने स्वर्ग राज्य में लेकर जाने के लिए, परमेश्वर ऐसे बड़ी अनुग्रह हमें देने के लिए हम सब जन परमेश्वर को हृदय की गहराई से हम सब जन परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद पिता। इस अच्छे सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। इस अच्छे सुबह के समय में परमेश्वर कुछ समय हम लोग परमेश्वर कलीसिया के लोग और जो भी इस वीडियो को परमेश्वर देख रहे हैं पिता, परमेश्वर हम सब जन एक मन के साथ आपके सम्मुख में हम लोग परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए कुछ समय ही सही, लेकिन परमेश्वर आपका और हमारा बीच में एक अच्छा संबंध परमेश्वर हम लोग फिर एक बार आपके साथ परमेश्वर वक्त बिताने के लिए मिला हुआ इस अच्छे संदर्भ के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। विशेष रीति से परमेश्वर इस वीडियो को देखने वाले हर एक के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता। आप हर एक को आशीष करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। आपकी अनुग्रह हर एक के ऊपर बनी रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते पिता। और परमेश्वर विशेष रीति से आपको और हमारा जो संबंध है दिन बर दिन परमेश्वर, वो परमेश्वर और मजबूत होने के लिए परमेश्वर, और हम लोग आपके करीब और हम लोग आने के लिए परमेश्वर हमें मदद कीजिए परमेश्वर। इस संसार में परमेश्वर हमारी हर एक चाल चलन, हमारे हर एक कार्य आपके लिए गवाही रूपी जीवन हम लोग जीने के लिए हम हर एक को मदद कीजिए पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। इस लॉकडाउन के समय में, इस कठिनाई के समय में किसी को भी कोई कमी न होते हुए परमेश्वर हर एक जन कुशल जीवन बिताने के लिए आप मदद करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आपकी बड़ी अनुग्रह बनी रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आगे की भागों को आपके हाथों में सौंप कर हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुन कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इतना समय, अभी कुछ समय हम परमेश्वर की धन्यवाद करके परमेश्वर की आराधना किए। परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए भलाई को हम लोग याद करते हुए हर एक दिन परमेश्वर हमारे मार्गों को चलाकर आने वाले कार्यों को अद्भुत रीति से जो परमेश्वर हमें चलाकर आया है, उन सब कार्यों को हम लोग याद कर कुछ समय हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद किए। लेकिन अभी थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। परमेश्वर के वचन को ध्यान करते समय परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या ये वचन हमें क्या सिखा रही है, इन कार्यों को हम लोग बहुत ध्यान से ध्यान करना है। वही परमेश्वर की वचन को ध्यान करने का कार्य है। उसी कारण से, उसी मोटिव से हम लोग परमेश्वर की वचन को ध्यान करते हैं। तो आज हम लोग ध्यान करने के लिए लिया हुआ वचन है भजन संहिता 34, सैम्स चैप्टर 34। ये भजन जो है दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन। इस भजन में हम लोग कुछ कार्यों को ध्यान करेंगे। इन कार्यों के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, हम लोग अधिक बारे में इसके बारे में सुने हैं। वो कार्य क्या है? 11 वचन क्या लिखा है? हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। इसमें दाऊद लिखता है कि मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा, परमेश्वर का भय। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग अधिक बार परमेश्वर का वचन सुन चुके हैं। इसके बारे में मैंने भी पहले भी एक बार आपसे इसके बारे में बातचीत किया हूँ। तो आज हमको ये वचन क्या बताना चाहती है? हर एक दिन हमें इस कार्य को हमारे जीवन में हमें एक्सेप्ट करना होगा कि परमेश्वर की वचन को हम जब भी पढ़ते हैं तो उससे हमारे जीवन में नए कार्यों को वचन हमें सिखाती है। कुछ कार्य हमें ऐसा लगता है कि यह वचन या फिर यह अध्याय को तो मैं पढ़ चुका हूँ, बहुत बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी अनेक समयों में हम लोग इसको हमारे जीवन में अनुभव किए हैं कि जब भी हम लोग जो वचन को हम लोग पढ़े हैं उसको फिर से हम लोग पढ़ते समय उसमें से कुछ नया कार्य, परमेश्वर हमसे कुछ नए कार्य को लेकर हमसे बात करता है। तो आज हमसे परमेश्वर क्या बातचीत करेगा? आज परमेश्वर हमें क्या सिखाएगा?
वो हम लोग देखेंगे। आज हम लोग सबसे पहला देखेंगे परमेश्वर का भय। हमारे जीवन में जो परमेश्वर का भय है, जो परमेश्वर का भय होना चाहिए, तो किस प्रकार का परमेश्वर का भय हमारे जीवन में हम लोग उसको लेकर चलना है, वैसा हम लोग 2 कार्य देखेंगे। आज हम लोग अनेकों के जीवन को देखेंगे कि आज हमारे जीवन को हम लोग आज थोड़ा सा जांच कर देखेंगे। दूसरों के बारे में लोग नहीं सोचेंगे। मैं आज आपके बारे में नहीं बताऊंगा कि आप कैसा, आपकी जीवन कैसी है या आप कोई कैसा जीवन बिता रहा है, वो सब नहीं। आज आप अपने बारे में जांच कर देखेंगे और मैं अपने आप को जांच कर देखूंगा कि क्या मैं परमेश्वर का भय में हूँ, क्या मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, क्या मैं किसी से कह सकता हूँ कि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला एक लड़का हूँ, क्या मैं परमेश्वर का भय मानकर एक सच्चाई का जीवन जीने वाला एक व्यक्ति हूँ। ऐसा करके क्या आप कह सकते हैं? क्या मैं अपने आप के बारे में कह सकता हूँ? क्या परमेश्वर हमें देखकर ये सोच सकता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा भय मानकर चलने वाला एक लड़का है, ये लड़की परमेश्वर मेरा भय मानकर चलने वाली लड़की है, क्योंकि क्या परमेश्वर आपको देखकर ये गवाही दे सकता है? तो इस बारे में हम लोग सोच कर आज हम लोग ध्यान करेंगे। तो किस प्रकार का भय? सबसे पहला 13 वचन में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। तो सबसे पहला भय, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है अपनी जुबान। इस बारे में हम लोग 1-2 हफ्ते पहले हमारी जो पास्टर जी ने प्रचार भी किया था अपनी जुबान के बारे में। अपनी जुबान से किस प्रकार की बातें निकलती है, हम दूसरों के बारे में अधिक प्रकार किस तरह से बातें करते हैं। हम अपने आप को जरा आज जांच कर देखेंगे कि हम लोग अपनी जुबान को किस प्रकार उपयोग करते हैं। या हम वचन हम सबको पता है, वचन में लिखा है कि जो जुबान है किसी को बना सकती है या किसी का परिवार को गिरा भी सकती है। ये वचन सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या हम उसे उपयोगी में लाते हैं? क्या हम उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं? तो आज हम लोग ध्यान करते समय थोड़ा अपने आप के बारे में सोच कर देखेंगे, हमारे जुबान को हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। हमारी जुबान को हम दूसरों को बनाने में, दूसरों को खड़ा करने में, दूसरों के बारे में अच्छाई भलाई बोलने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर दूसरों के खिलाफ यूज करते हैं। आज अधिक समयों में हम अपनी जो जुबान है दूसरी गैर बातों को बातचीत करने में ही हम लोग बिता देते हैं। हमें ये बहुत पसंद है, हम भारतीय लोगों को, जो भारत के लोग हैं, हमें दूसरों के बारे में, दूसरों के कार्यों के बारे में जांचना, उनकी जीवन के बारे में किसी और के साथ बातचीत करना, ये सब कार्य हमको बहुत पसंद आता है और हम लोग यही कार्य बहुत अधिक रीति से करते हैं। अपने आप को पूछ कर देखिए, क्या आप ऐसे करते हैं? क्या आप दूसरों के बारे में अधिक बात करते हैं या अपने बारे में ही अपनी कमियों को सोचकर परमेश्वर के सम्मुख में अब जो कार्य है आप लोग परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को अर्पण करते हो? तो हमें अपनी जुबान को क्या करना है, हमेशा एक कंट्रोल में रखना है। जो मनुष्य, हमने ये वचन पढ़ा था, जो मनुष्य अपनी जुबान को कंट्रोल में रखता है, अपनी काबू में रखता है, वो कौन है? वो बुद्धिमान है करके हमने वचन पढ़ा था। हमारे पास्टर जी ने जो प्रचार किए थे। तो हमें आपको अपने आप को आज पूछ कर देखिए, क्या हम बुद्धिमान है? क्या दूसरे लोग हमें देखकर कह पाएंगे कि ये मनुष्य जो है बुद्धिमान है? जिससे बातचीत करेंगे तो ये बहुत अच्छा ज्ञानी जैसा बातचीत करता है, या इस कुछ डाउट हो या और ये मनुष्य से हम लोग कुछ पूछे तो ये मनुष्य हमसे अच्छे कार्य करता है। तो इस तरह दूसरे लोग हमारे बारे में इस तरह से कहना है। तो वही परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करना है, अपनी जुबान को, अपनी जीभ को हमें क्या करना है? बुराई से रोक रखना है। ये जीभ जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। हम जो बातचीत करते हैं वो परमेश्वर की अनुग्रह है। हम अनेक लोग को हम देखे हैं कि जो लोग बातचीत नहीं कर पाते, वो लोग कुछ बोल नहीं पाते। मैं चेन्नई में था एक बार, तो एक अनाथ आश्रम के कुछ बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए हम लोग गए थे। एक अच्छे बड़ा गार्डन में, बीच साइड में वो बच्चे लोग आए थे और उनके साथ हम लोग एक दिन पूरा उनके साथ बिताए थे। तो वो बच्चे लोग जो थे वो लोग बातचीत नहीं कर पाते, गूंगे थे, लेकिन हमें परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया है। हम लोग उतना दिन उनके साथ पूरा अच्छा खेल कूद कर सब जन ने अच्छी तरह से खुशी का एक दिन मनाए। कितना अच्छा दिन था। तो उस तरह से हमें परमेश्वर ने हमें उनके समान नहीं रखा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के, हमें जो बातचीत हम करते हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह है।
तो हमें उस अनुग्रह को हमेशा याद करना है। याद कर कर हमें हमारी जुबान से कुछ बुराई की बातें नहीं निकालना है। आज अपने जीवन को जरा सोच कर देखिए, अपनी जुबान से हम लोग कितने समय गालियां देते हैं। गालियां देते हैं या नहीं, वो आपको आपसे ही प्रश्न करना है। मैं नहीं कह सकता कि आप गाली देते हो या नहीं। मैं अनेक लोगों को देखा हूँ जो कलीसिया भी जाते हैं, बाहर देखेंगे तो मस्त गाली देते हैं, बाहर ऐसे ही घूमते फिरते हैं। तो वैसा जीवन हमें नहीं बिताना है। इस जुबान से, जिस जुबान से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिस जुबान से हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जिस जुबान से हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, उस जुबान से हम लोग गंदी शब्दों को नहीं निकालना है। परमेश्वर का वचन भी हमसे कहता है कि हमारी जुबान से हमें गालियां नहीं देना है, हमें दुष्ट जो गंदी शब्द हैं हमारी जुबान से नहीं निकालना है। ऐसे कार्य परमेश्वर हमें सिखाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करना है कि हमें अपनी मुंह की चौकसी करना है कि उससे छल की बात ना निकल रही। हमें केवल इस जुबान को संभालना नहीं है, हमें चौकसी करना है। जिस तरह से एक वॉचमैन एक घर की या बिल्डिंग की चौकसी करता है कि कोई चोर ना आ जाए या कोई कुछ आपातकालीन कुछ कार्य ना हो जाए, उस तरह से हमें इस जुबान की क्या करना है, चौकसी करना है, इसकी रखवाली करना है कि हमारी जुबान से कुछ गंदी बातें न निकल जाए। हमारी जुबान से कुछ जो गलत, कभी कभी क्या होता है, कुछ हम गुस्से में कुछ ना कुछ बोल लेते हैं, तो तभी ये चौकसी जो है बहुत ध्यान काम की चीज है कि तभी उस समय में भी किस प्रकार हम अपनी जुबान को कंट्रोल करते हैं, उस बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग थोड़ी अपने आप को जांच कर देखेंगे कि परमेश्वर ने जो जुबान हमें दिया है, हम किस प्रकार हमें उपयोग करते हैं, इससे कोई बुराई की बातें निकलती है या नहीं। अगर निकलती है तो आज हम उसको परमेश्वर के सम्मुख में कबूल कर आज हम उसको छोड़ेंगे। जो कार्य हम छोड़ते हैं उसे हमें फिर कभी नहीं अपनाना है। वही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। दूसरा जो परमेश्वर का वही है, 14 वचन में लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। क्या लिखा है? बुराई को छोड़ और भलाई कर। इसमें केवल ये नहीं लिखा है कि बुराई को छोड़। अनेक लोग कहेंगे कि बुराई कार्य नहीं करना है, गंदी बातें नहीं करना है, गंदी चीजें नहीं करना है, उसके बदले भी हमें कुछ और करना है। केवल चुपचाप जो बुराई कार्य न करते हुए चुपचाप नहीं रहना है। बुराई को छोड़ और भलाई कर। अगर आज आप बुराई के कार्य कुछ आपके जीवन में है या मेरे जीवन में है, मेरे जीवन में जो बुराई के कार्य जो कुछ हो वो केवल मुझे पता होगी, आपको नहीं पता होगी। आपके जीवन में अगर कुछ बुराई के कार्य है तो वो केवल आपको पता है, किसी और को नहीं पता है। तो आज हम लोग उसको जांच कर देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या बुराई की कार्य है, क्या हम जो परमेश्वर के कार्य में और या सांसारिक कार्य में कुछ बुराई मेरे बीच में है, मेरे जीवन में है क्या। जो ये बुराई की कार्य जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है। हम जब परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं, ये बुराई जो है एक दीवार के समान आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ा होता है। और उसके बाद हम लोग परमेश्वर से प्रश्न करते हैं कि मैंने ऐसा प्रार्थना किया, मैंने ये मांगा लेकिन वो नहीं हुआ, मैंने ऐसा प्रार्थना किया लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, कैसे पूरा होगा? गलती कहाँ पर है? गलती हम पर है। तो आज अपने आप को जांच कर देखो। आज की जो मेडिटेशन है इसमें आपको अपने आप को जांच कर देखना है, क्योंकि आपके हृदय की कार्य, आपके दिमाग के कार्य को कोई और नहीं जान सकता, कोई और नहीं पहचान सकता। वो केवल आप ही जान सकते हो, वो केवल आप ही पहचान सकते हो। हमारे दिमाग के कार्य हमारी करतूत में बाहर आ सकते हैं, लेकिन हमारी जो दिल और दिमाग में जो बुराई है तो वो केवल आपको पता है। तो आज हम क्या करेंगे? इस जो बुराई कुछ है, क्या मेरे जीवन में कुछ बुराई है? क्या मेरे जीवन में कुछ कमी है? क्या मैं परमेश्वर से उतना प्रेम करता हूँ जितना करना चाहिए, या फिर मैं हमारे किसी और के खिलाफ क्या कुछ मैं बोलता हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए? क्या मेरी जुबान कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है, जहाँ पर कि वो कंट्रोल में रहना चाहिए? क्या मेरी बातें दूसरों को हर्ट करती है या मेरी बातें दूसरों को बनाती है? इस बारे में आपको सोचना है, क्योंकि 16 वचन में देखो क्या लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। मतलब परमेश्वर जो लोग बुराई करते हैं उनको परमेश्वर घृणा करता है, उनके विरोध परमेश्वर खड़ा होता है। तो अभी आप सोच कर देखिए कि आप में कुछ बुराई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आप में बुराई है
तो परमेश्वर आपके विमुख खड़ा रहता है, ना कि आपके साथ। आप परमेश्वर आपके विमुख जब खड़ा है तो आपको आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी विनतियों को परमेश्वर कैसे सुनेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में भलाई हो, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, परमेश्वर के साथ आपकी संबंध जो है लगातार अच्छी तरह से बनी रहे, तो ये बुराई करके छोटी सी कार्य जो है इसको हमारे जीवन से निकालनी पड़ेगी। तो आज हम इसके बारे में सोचकर बुराई को अपने जीवन से हम लोग निकालेंगे, तभी परमेश्वर हमारा साथ खड़ा रहेगा, ना कि हमारे खिलाफ। अगर हम बुराई करते रहे तो परमेश्वर एक समय में हमारे विरुद्ध खड़ा रहेगा। बुराई करते समय पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है कि ये मत कर, कि वो मत कर, लेकिन फिर भी हम लोग अधिक समय में उसे न सुनते हुए उसको हम लोग तुच्छ जानेंगे, तो एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारे विरुद्ध खड़ा होगा। बुराई करने वालों के विरुद्ध खड़ा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, वो सच्चाई का वचन है। और अभी हम लोग देखें कि किन कार्यों में हमें परमेश्वर का डर मानना है, या किन कार्यों में हमें जागरूक रहना है, या किन कार्यों को हमें हमारे जीवन में बदलना है। इन कार्यों को ठीक से सुनकर हमें अपने जीवन में उपयोगित में लाना है, केवल वचन को सुनकर हमें छोड़कर नहीं जाना है। अभी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का जो भय मानते हैं, जो परमेश्वर के डर रहे हैं, उनके लिए क्या भलाई है। अभी हम लोग अधिक समय में सोच सकते हैं कि संसार में हम लोग जीते हैं तो कुछ बुराई तो करना ही पड़ेगा, कुछ ऊपर नीचे कार्य तो करना ही पड़ेगा, उल्टा सीधा काम तो करना ही पड़ेगा, दो पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ झूठ बोलना ही पड़ेगा, ये सब सोचते हैं। लेकिन ये सब न करते हुए, ये सब नहीं करते हुए परमेश्वर के लिए अच्छा एक बच्चा बनकर हम लोग जिए तो हमारे जीवन में क्या भलाई है। 7वां वचन पढ़िए, क्या लिखा है। यहोवा के डरवों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। यहोवा के डरवों के चारों ओर उसके दूत उसको छावनी किए हुए उसको बचाता है। तो आप और हमको जो परमेश्वर का डर हम लोग मानते हैं, परमेश्वर के दूत हमें बचाएगा। छावनी किए हुए 24 घंटा 365 दिन हमारे साथ परमेश्वर का दूत हमारे साथ रहकर हर एक दिन हर एक पल वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमें चलाएगा, हर एक कार्यों से, आपातकालीन स्थितियों से वो हमें बचाएगा। तो ये सबसे पहला। दूसरा, 9वां वचन में देखिए, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवों को किसी भली बात की गति नहीं होती। ये दोनों वचन को जरा पढ़कर देखिए। इस वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर का जो डरवे हैं, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, उनकी जीवन में कुछ घटी नहीं होती, उनको जीवन में कभी कुछ कमी नहीं आएगी, इसमें लिखा है। और पहले वाले वचन में क्या पढ़ा कि परमेश्वर के दूत हमें 24 घंटा, परमेश्वर के दूत जो है परमेश्वर के जो डर मानते हैं उनको बचाता है। हमारे जीवन में हमें इस संसार में जी कर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, क्यों? हमें कुछ कमी नहीं होना है करके, हमारे जीवन में कुछ कमी घटी नहीं आना है करके हम लोग कामकाज करते हैं, कुछ करते हैं। तो परमेश्वर का डर मानेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी भी हमारे जीवन में कुछ कमी घटी होने नहीं देगा। और दूसरा, हम लोग क्यों प्रयास करते हैं कि परमेश्वर हमें सुरक्षा रहना है करके हम लोग प्रयास करते हैं, इसलिए हम लोग अपना घर में रहते हैं, दरवाजा बंद कर रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग दूत लोग 24 घंटा आपकी रक्षा करेंगे। तो इसका एक ही कार्य है, सिंपल कार्य क्या है, परमेश्वर का भय मानना। तो आज से हम लोग थोड़ा अपने और थोड़ा सा जांच कर देखेंगे कि परमेश्वर की भय मानने से हमें उपयोगित है या नहीं, क्योंकि हम लोग अधिक समयों में छोटे छोटे कार्यों में हम लोग गलती कर बैठते हैं। बस उन कार्यों को हम लोग थोड़ा जांच कर आज देखेंगे, और परमेश्वर उन कार्यों को जांच कर उनसे बच निकलने के लिए आप सबको मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कार्य मैंने कहा, 2 कार्य मैंने कहा, सबसे पहले हमें क्या करना है, परमेश्वर का डर मानना है। दूसरा, हमें क्या करना है कि हमें अपनी जुबान पर क्या करना है, कंट्रोल करना है, कुछ हमें बुराई की बातें नहीं करनी है। तीसरा, हमें क्या करना है, बुराई को छोड़कर हमें भलाई करना है। हम लोग ये आज इन कार्यों के बारे में थोड़ा अकेलेपन में इस वचन को मैं आप सब से कहता हूँ कि इस वचन को आप सब जन खुद से एक बार पढ़कर
पढ़कर इसको जांच कर देखिए, आप इसको ध्यान कर देखिए। परमेश्वर आप सबसे बातें करेगा और परमेश्वर आप सबको जो परमेश्वर का डर मानना है, परमेश्वर की और हमें करीब आना है, उसके लिए परमेश्वर आप सबकी मदद करेगा। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सबको आशीष करे। आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான ஓய்வு நாள் காலை வேளைக்கான கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். इस विश्राम दिन के सुबह के समय आप सबको परमेश्वर को धन्यवाद। கர்த்தர் நமக்கு புதிய ஜீவனை கொடுத்து परमेश्वर हमें नया जीवन देगा। இந்த நாளை கர்த்தர் காண செய்த கிருபைகளுக்காக தேவனுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்த வேண்டும். ये दिन हमें देखने को दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। எத்தனையோ துன்பங்கள் பாடுகள் நம்மளை நம்மோடு வந்தாலும் கூட कितने संकट मुसीबत तकलीफ आया तो भी அவன் நம்மளை கைவிடாதபடிக்கு நம்மளை இதுவரைக்கும் நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார். वो हमारे हाथ न छोड़ते हुए अभी तक उसने हमें संभाल कर लाया அவருடைய है। கிருபை மாறாதது. उसका अनुग्रह कभी नहीं बदलता। हालेलुया। हालेलुया। இயேசுவின் நாமத்தினால் உங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता நீங்க हूँ। கர்த்தருக்குள்ளாக எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கும்படியாக நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். आप प्रभु में सदा आनंदित रहने के लिए हम प्रभु से विनती करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। நாம் இப்பொழுது கர்த்தருடைய வசனத்துக்குள்ளாக நம்ம கடந்து செல்வோம். अभी हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाते हैं। கர்த்தர் நம்மோடு கூட அவர் பேசுவாராக. परमेश्वर हमसे हमारे द्वारा बात करें। சங்கீதம் 25ஆம் சங்கீதம் भजन संहिता 25 அதுல 12ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். उसका 12 वचन पढ़ेंगे। அதற்கு ஹிந்தியில படிக்கலாம். उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் எவனோ அவனுக்கு தாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை போதிப்பார். भजन संहिता 25 उसका 12 वचन। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। அருமையான வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. यहाँ पे एक अच्छा वचन कहा गया இந்த है। 25ஆம் சங்கீதம் ये 25 भजन संहिता இது தாவீதின் சங்கீதம் என்று மேல் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. ये दाऊद का भजन करके लिखा गया है। தாவீது என்ன சொல்லுகிறார்? दाऊद क्या कहता है? கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் எவனோ जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, அவனுக்கு தாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை அவர் போதிப்பார். वो उसे अपने मार्ग उसे बतलाएगा। அப்ப கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதுனால परमेश्वर का भय मानने से ஆண்டவருடையதான வழி எப்படிப்பட்ட வழி என்று சொல்லி परमेश्वर का मार्ग कैसा है, ஆண்டவருடையதான சோதரம் காரியங்கள் எப்படி என்று சொல்லி परमेश्वर का कार्य कैसा है, தேவனுக்கு பயப்படுகிற மனுஷனுக்கு கர்த்தர் போதிப்பார். जो परमेश्वर से डर भय मानता है उनको परमेश्वर चलाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் परमेश्वर की जन हम இந்த लोग உலகத்துல நம்ம வாழுகிறபடினால इस दुनिया में जीने के कारण சோதரம் நாம் சில நேரங்கள்ல மனிதருக்கு பயப்படுகிறோம். कभी-कभी मनुष्य से हम लोग डर जाते हैं। இல்லைன்னு சொன்னா சில போராட்டங்கள், नहीं तो कुछ संघर्ष, சில பாடுகள், कुछ तकलीफें சில வியாதிகள் வரும் பொழுது या कुछ बीमारी आते அதை समय கண்டு நாம் பயப்படுகிறோம். उसे देखकर भी हम डर जाते हैं। நாம் அதை கண்டு பயந்து நம்ம சோர்ந்து போகிறோம். उससे डर कर और हम निराश हो जाते ஆனா हैं। வேதவசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, लेकिन वचन साफ-साफ कहता है மனுஷனுக்கு பயப்படும் பயம் கண்ணியை வரிவிக்கும் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. जो मनुष्य से डरता है उसके लिए फंदा आ जाती है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर की जन ஒருபோதும் कभी भी நாம் மனுஷனுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. मनुष्य से डरना आवश्यक नहीं ஆனால் है। நம்மை ஆளுகை செய்கிறதான लेकिन हमें राज्य करने நம்முடைய वाले தேசத்தின் தலைவர்களுக்கு கட்டளைகளுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிய வேண்டும். हमारे जो नेताओं की बात को आज्ञा को मानना चाहिए। நாம் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். हम उन्हें इज्जत देना चाहिए। நாம் அவர்களை கனப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி हम उनका आदर करना चाहिए। நமக்கு வேதவசனம் கற்றுக் கொடுக்கிறது. वचन भी हमें सिखलाती है। அதனால इसीलिए இந்த மனுஷனுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. मनुष्य से डरना हमें अवश्य அப்போ नहीं है। நாம் தேவனுக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டும். परमेश्वर का भय मानना நாம் चाहिए। கர்த்தருக்கு பயப்படும் பொழுது जब परमेश्वर को भय मानेंगे, எந்த மனுஷனா இருந்தாலும் चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, அவனுக்கு उसके लिए நாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை போதிப்பாரு தாவீது சொல்லுகிறார். जो उसने चुना हुआ मार्ग है उसे चलाएगा। கர்த்தருக்கு பயப்படுறதுனால परमेश्वर का भय मानने இந்த से வேத வசனத்துல ये वचन में अनेक ஆசீர்வாதங்களை நாம் பார்க்க முடியும். कई प्रकार के आशीषों को हम लोग देख सकते இந்த हैं। ஆசீர்வாதங்கள் வேதத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. यहाँ पे अनेक आशीषें लिखा गया அவருக்கு है। பயப்படுறதுனால उनका भय मानने से நமக்கு நன்மைகள் கடந்து வருகிறது. हमें भलाई आती है। அப்ப நாம் ஆண்டவருக்கு நாம் பயப்படும் பொழுது जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में சோதரம் நாம் ஆண்டவருக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், परमेश्वर के लिए हमें क्या करना இல்ல நாம் चाहिए, எப்படி இருக்க வேண்டும், तो हम कैसा रहना
चाहिए என்று சொல்லி ऐसा कहकर இந்த காலை வேளையில इस सुबह के समय கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பார்க்கலாம். परमेश्वर का भय मानने वालों का क्या आशीष है वो हम देखने जा நாம் रहे हैं। முதலாவதாக பார்ப்போமா? पहला हम देखें क्या ஆதியாகமம் उत्पत्ति 22ஆம் அதிகாரம் अध्याय 22 அதில் 12ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. की 12 वचन कहा அங்கே है। என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? उसमें कहा क्या है? அப்பொழுது அவர் तब उसने உன் பிள்ளையாண்டான் மேல் உன் கையை போடாதே, लड़के पर हाथ मत बढ़ा, நீ அவனை புத்திரன் என்றும் பாராமல் तूने अपना पुत्र भी नहीं உன் समझा ஏக சுதன் என்றும் பாராமல் और ना ही तो एकलौता पुत्र को रख छोड़ा, எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தபடியால் तू मेरे लिए दिया है। நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறாய் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன். तू परमेश्वर का भय मानता है करके मैं अब जान गया हूँ। ஆமென். आमीन। இது அங்க இது தமிழில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. यहाँ पे क्या कहा गया है? ஆபிரகாமை குறித்து இங்க தெளிவாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. अब्राहम के बारे में साफ कहा गया அப்போ है। முதலாவதாக तो पहला கர்த்தருக்கு பயப்படுறதுனால परमेश्वर का भय मानने से அந்த அந்த பயமானது वो जो भय है நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में ஒரு அர்ப்பணிப்பின் வாழ்க்கையை கொண்டு வருகிறது. एक अर्पण का जीवन को बतलाती है। பாருங்க, கர்த்தர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்றாரு, परमेश्वर ने अब्राहम को देखकर நீ कहा உன்னுடைய மகனை तू अपने पुत्र को, நீங்க 1ஆம் வசனத்தை பாருங்க, 2ஆம் வசனம் பார்க்கும் பொழுது दूसरा वचन में आप पढ़ेंगे, உன் புத்திரனும் अपने पुत्र, உன் ஏக சுதனும் अपने इकलौते पुत्र உன் நேச குமாரனுமாகிய और तेरा प्रेम पुत्र ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்துக் கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போ, ईसा को संग लेकर मोरिया देश चला जा, அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலையின் ஒன்றின் மேல் वहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर जा, அவனை தகன பலியிடு என்று जो சொல்லுகிறார். मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके பாருங்க, चढ़ा। இவனுக்கு எத்தனையோ வருடங்கள் சோதர குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் காணப்பட்டது. कितने वर्ष तक इसको संतान नहीं था, ஆனா ஆபிரகாமை கர்த்தர் சோதித்தார். परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। ஆபிரகாம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனா अब्राहम परमेश्वर से भय मानता இல்ல है பயப்படுகிறவன் இல்லையா? या नहीं डरता है? அவனுடைய வாழ்க்கையில் அர்ப்பணிப்பின் வாழ்க்கை இருக்கிறதா? उसका जीवन में अर्पण का जीवन தன்னுடைய है। மகனை எனக்காக ஒப்பு கொடுப்பானா तो क्या अपने बच्चे को मेरे लिए देगा என்று சொல்லி ऐसा இந்த कहकर கர்த்தர் ஆபிரகாமோட அவர் பேசுகிறார். परमेश्वर अब्राहम से बात करता என்னுடைய है, மகனை கூட்டு வந்து சொல்லுகிறார். अपने पुत्र को लेकर जा, நான் ஒரு மலையில குறிப்பேன், मैं तेरे एक पहाड़ அந்த बताऊंगा, மலையில அவனை தகன பலியிடும் என்று சொல்லுகிறார். वहीं पे तू उसकी होम बलि करना। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இந்த கீழே அந்த வசனம் வாசித்துக் கொண்டு வரும் பொழுது इसके नीचे आप पढ़ते आएंगे तो ஆபிரகாம் अब्राहम கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே அவன் கீழ்ப்படிந்தான். परमेश्वर का वचन को ऐसे ही माना, தன்னுடைய வேலைக்காரரோடு கூட अपने नौकर के साथ சோதரம் ஆண்டவர் குறிக்கப்பட்டதான परमेश्वर ने जो जगह बताए அந்த மலைக்கு அவன் கடந்து போகிறான். उस पहाड़ पर चले गया। தேவன் அவனுக்கு சொல்லிந்த இடத்துல ஆபிரகாம் வந்ததான பார்க்க முடியும். परमेश्वर ने जो पहाड़ बताया वहां पर अब्राहम आया। அங்க ஆபிரகாம் तब वहां அங்க अब्राहम கட்டைகளை அடுக்கி वहां पे लकड़ी को इकट्ठा தன் किया, குமாரன் ஈசாக்கை அதுல கட்டுகிறான். अपने पुत्र ईसाक को उस पर बैठाता है, ஈசாக்கை கட்டி उसे बांध அந்த कर பலிபீடத்தின் மேல் उस वेदी पर அந்த அடுக்கிய கட்டையை மேலே அவனை கடத்தினான். लकड़ी को ऊपर रख दिया। பாருங்க, ஆபிரகாம் சோதரம் ஆண்டவர் வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து अब्राहम परमेश्वर का वचन मानकर சோதரம் கர்த்தர் சொன்னதான அந்த காரியங்களை அவன் செய்ய ஆரம்பித்தான். जो परमेश्वर ने कहा वो काम करने शुरू किया। தன்னுடைய மகனை பலியிடும்படியாக அவன் எல்லாம் ஆயத்தமாக பண்ணிவிட்டான். अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ तैयारी किया। அந்த அடுக்கிய கட்டையின் மேல उस लकड़ी के ऊपर தன்னுடைய மகனை அவன் கடத்தினான். अपने बेटे को रख दिया, தன்னுடைய மகனை கடத்தி अपने बेटे को ऊपर रखकर சோதரம் பின்பு ஆபிரகாம் குமாரனை வெட்டும்படியாக फिर अब्राहम अपने हाथ बढ़ाकर தன் छुरी लेकर தன் கையை நீட்டினான். अपने हाथ को बढ़ाकर छुरी கத்தி लिया, எடுத்தான். छुरी को அப்படி उठाया। கர்த்தருடைய தூதனானவர் तब यहोवा का स्वर्गदूत வானத்திலிருந்து ஆபிரகாமே उसे पुकार कर कहा, ஆபிரகாமே हे अब्राहम, हे இதோ अब्राहम, அடியேன் என்கிறான். देख मैं यहाँ हूँ। அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்றாரு, तब कहता है, நீ அவனை புத்திரன் என்றும் பாராமல் तूने उस पर तो अपना लड़का भी नहीं समझा, ஏக சுதன் என்றும் பாராமல் ना ही तेरा इकलौता पुत्र எனக்காக समझा, ஒப்படுத்தபடினால तूने मेरे लिए रख छोड़ा நீ है। தேவனுக்கு பயப்படுதல் அறிவென்று சொல்லுகிறான். इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ஆமென். आमीन। पर ஆபிரகாம் தேவனை, அதாவது சோதர் தேவனுக்காக अब्राहम परमेश्वर के लिए சோதர் தன்னுடைய ஒரே மகனாகிய अपना इकलौता पुत्र को, ஆபிரகாமை பலியிடும்படியாக ஒப்பு கொடுத்தான். उसने इसहाक को बलि देने के लिए अर्पण किया। ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பலியிட ஒப்பு கொடுத்தான். अब्राहम इसहाक को बलि देने के लिए अर्पण
இந்த காரியத்தை அவன் செய்தபடியினால ये कार्य करने से கர்த்தர் அவனை பார்த்து சொல்லுதார், परमेश्वर उसे देखकर कहता இப்பொழுது है, நான் அறிந்து கொள்ளுகிறேன், अब मैं जान गया हूँ நீ எனக்கு நீ பயப்படுகிறவன். तू परमेश्वर का भय मानता है। ஆம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, हाँ प्रभु की जनों, கர்த்தருக்கு எந்த மனுஷன் பயப்படுகிறானோ जो कोई परमेश्वर का भय मानता है அவன் தன்னை தானே தேவனுக்கு அவன் ஒப்பு वो கொடுப்பான். अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पण அவனுக்கு இந்த करेगा। உலகம் எல்லாம் சோத்திரம் ஒன்றுமே இருக்காது. उसे दुनियादारी कुछ भी नहीं இந்த रहेगा। உலகத்தின் காரியத்தை குறித்து அவன் அவ்வளவாக சிந்திக்க மாட்டான். ये दुनिया के कार्यों में अपना मन नहीं लगाएगा। எதுவானாலும் பரவாயில்லை, चाहे कुछ भी हो जाए, கர்த்தருக்காக परमेश्वर के அவன் लिए தன்னையே அர்ப்பணிக்கும்படியாக वो अपने आप को अर्पण करने के அவர்கள் लिए ஒப்பு वो கொடுப்பார்கள். अर्पण करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் जो परमेश्वर का भय मानता அவன் है தேவனுக்காக वो परमेश्वर के அவன் लिए தன்னை அவன் ஒப்பு वो கொடுப்பான். अपने आप को अर्पण करता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் சொன்ன அந்த காரியங்களை ஆபிரகாம் செய்த உடனே परमेश्वर ने जो कार्य अब्राहम को बताया ஆபிரகாம் பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னாரு, वो अब्राहम को देखकर प्रभु ने நான் कहा, ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து मैं तुझे आशीष ही आशीष உன் करूंगा। சந்ததி வானநட்சத்திரங்களுக்கு நான் பெருகவே நான் பெருக பண்ணுவேன். तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान मैं உன் बढ़ाऊंगा। சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசலை சோதித்துக் கொள்வார் என்று சொல்லி तेरे वंश जो है शत्रु के ऊपर हो जाएंगे। நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படுத்தபடியினால तूने मेरे बात माना உன் इसीलिए உன் சகல ஜாதிகளிலும் तेरे सारे लोगों में से உன் சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லி तेरे वंश आशीष होगा। அவன் தேவன் ஆண்டவர் ஆணையிட்டார். परमेश्वर ने उससे वादा किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருக்கு பயப்படுற மனுஷர்கள் जो कोई परमेश्वर से भय मानता அவர்கள் என்ன है செய்வார் என்று சொன்னால் क्या करता है? தங்களையே அர்ப்பணிப்பதற்காக அவர்கள் தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்பார்கள். वे लोग अपने आप को अर्पण करने के लिए प्रभु के पास सौंपते हैं। ஆபிரகாமை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்தார். परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष करने शुरू நீங்க किया। ஆபிரகாமுடைய அந்த அந்த காரியங்களை படித்து வரும் பொழுது अब्राहम के बारे में आप पूरा पढ़ते அவன் समय வயது சென்றான போது கூட उसका उम्र बीतने के बाद கர்த்தர் भी ஆபிரகாமை परमेश्वर ने अब्राहम को சகலவற்றிலும் அவனை ஆசீர்வதித்தார். हर एक कार्यों में उससे आशीष எந்த किया। மனுஷன் கர்த்தருக்காக தன்னை அர்ப்பணிக்கிறானோ, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के अर्पण करता है, எந்த மனுஷன் கர்த்தருக்காக தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறானோ, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण करता அவனை है, ஆண்டவர் வெறுமையா விடுகிற தேவன் அல்ல. उसे परमेश्वर ऐसे नहीं खाली அவனை छोड़ेगा। ஆண்டவர் உயர்த்துவார். उसे परमेश्वर ऊंचा அவர்களை करेगा। ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். उन्हें परमेश्वर आशीष करेगा। ஆபிரகாமை अब्राहम को அவ்விதமாக उस रीति से கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து அவனை உயர்த்தினார். परमेश्वर ने आशीष करके ऊंचा किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். तो प्रभु आपको भी आशीष करना चाहता நீங்க என்ன है। செய்ய வேண்டும்? आपको क्या करना நீங்க है? கர்த்தருக்காக பயப்படுவீர்கள் என்று சொன்னால் अगर आप परमेश्वर का भय मानते எந்த हो, சூழ்நிலைகளிலும் कोई भी परिस्थिति எந்த में, உபத்திரவங்களிலும் कोई भी तकलीफ में உங்களையே अपने आप को ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, परमेश्वर के पास सौंपेंगे, உங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, अपने आप को अर्पण करेंगे। ஆபிரகாம் ஆசீர்வதித்த ஆண்டவர் जिस तरह परमेश्वर अब्राहम को आशीष किया, இந்த வாரத்துல इस हफ्ते में கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு அவர் போதுமானவர். परमेश्वर आपको आशीष करने में काफी है। ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் அவர். परमेश्वर कितना अच्छा है, உங்களை அவர் நேசிக்கிறவர் அவர். वो आपसे प्रेम करता है। ஆபிரகாமை ஆண்டவர் நேசித்தார். परमेश्वर ने अब्राहम से प्रेम किया। ஆபிரகாம் ஆண்டவர் சொன்னாரு, अब्राहम को देख के परमेश्वर நீ ने என் कहा, சிநேகிதன் என்று சொன்னாரு. तू मेरा मित्र है। அந்த சிநேகிதனை கர்த்தர் கைவிடவில்லை. उस मित्र का हाथ नहीं छोड़ा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்றைக்கும் आज भी கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், प्रभु आपको देखकर कहता है, கர்த்தருக்கு பயப்படும் பொழுது जब तुम परमेश्वर का भय நீங்கள் मानोगे, உங்களை நீங்க அர்ப்பணிப்பீர்கள். आप अपने आप को अर्पण करोगे। அது அர்ப்பணிக்கும் பொழுது ऐसा करते பெரிய समय ஆசீர்வாதங்கள் உங்களை தேடி வரும். बड़े आशीष आपको ढूंढ कर आएंगे। இரண்டாவதாக பார்க்கும் பொழுது दूसरा हम देखते हैं, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் जो परमेश्वर का भय मानता அவர்கள் है, என்ன செய்வார்கள்? क्या करेंगे? 1 ராஜாக்கள் पहला राजा அதனுடைய 18ஆம் அதிகாரம் उसका 18 अध्याय அதனுடைய 3 எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது 3 से लेके 8वां वचन तक आप पढ़ेंगे। 1 ராஜாக்கள் पहला राजा 18ஆம் அதிகாரம் 18 अध्याय 1 3 வசனம் படிக்கும் பொழுது पहले से लेके तीसरा वचन तक पढ़ेंगे। அங்கு ஒரு காரியம் அழகாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वहाँ पे एक कार्य बताया गया है। பாருங்க, உபதியா என்றதான ஒரு தேவ மனுஷன் ओबद्याह नामक का परमेश्वर का एक दास கர்த்தருக்கு மிகவும் பயந்து நடக்கிறவனா என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. परमेश्वर का भय मानने वाला था। அங்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वो कहा गया है, இங்க வரை எசேபேல் கர்த்தரின் தீர்க்கதரிசிகளை அமாராக சங்கரிக்கும் போது जब इजबेल
नबियों को नष्ट करती थी, உபதியா 100 தீர்க்கதரிசிகளை சேர்த்து ओबेदिया ने 100 नबियों को लेकर 50 பேரை கெபியில் அவன் ஒளித்து வைத்தான். 50 करके गुफा में छिपा அது रखा। மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, அவர்களுக்கு அப்பமும் उनको अन्न தண்ணீரும் கொடுத்து जल देकर அவர்களை பராமரித்து வந்தான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उनका पालन पोषण करता रहा। இந்த எசேபேல் ஆவி ये इजेबेल की आत्मा தீர்க்கதரிசிகளை கொல்லும்படியாக, नबियों को मार डालने के लिए, தீர்க்கதரிசிகளை அழிக்கும்படியாக नबियों को नष्ट करने के लिए எழும்புன பொழுது उठते समय உபதியா பாருங்க, ओबेदिया அவனை குறித்து வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. उसी के बारे में साफ-साफ कहा அவன் है, கர்த்தருக்கு மிகவும் பயந்து நடக்கிறவன். वो परमेश्वर का अत्यंत भय मानने वाला व्यक्ति அப்போ था। கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிறவர்கள் जो परमेश्वर का भय मानता है, ஊழியர்களை ஆதரிப்பார்கள். वे लोग सेवक लोगों की मदद करते हैं। Praise the Lord. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஊழியர்களை ஆதரிப்பார்கள். सेवक लोगों की मदद करते இப்ப हैं। பாருங்க, அந்த 50 ஆக தீர்க்கதரிசிகளை ஒளித்து வைத்து விட்டான். 50 भविष्यवक्ता यानी नबियों को उन्होंने छिपा कर அந்த रखा। அந்த நாட்களில उन दिनों में இவன் இந்த காரியத்தை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் अगर ये कार्य अगर विद्या नहीं करता, இசேபேல் इजेबेल 100 தீர்க்கதரிசிகளை கொன்றிருப்பாள். 100 जो भविष्यवक्ता को मार डाल देती। அவர்களுக்கு அவன் உபசரம் பண்ணினான். அவன் उनका पालन पोषण उन्होंने किया, அப்பமும் தண்ணீரும் கொடுத்து उन्हें अन्न जल देकर அவர்களை பராமரித்து என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उनका पालन पोषण करता था। ஆம், தேவனுடைய பிள்ளைகளே, हाँ प्रभु की எந்த जनों, ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் जो कोई प्रभु का व्यक्ति கர்த்தருக்காக அவர்கள் பயந்து நடக்கிறார்களோ, परमेश्वर का भय मानकर चलते हैं, அவர்கள் வந்து वे जो है ஊழியர்களை அவர்கள் சோதரம் தாங்குவார்கள். सेवकों यानी दास लोगों को मदद करते हैं, ஊழியர்களை பராமரிப்பார்கள். सेवक लोग को पालन पोषण करते हैं। உபதியா நல்ல ஒரு தேவ மனுஷன். ओबद्या प्रभु का अच्छा एक दास அவன் था, கர்த்தருக்கு மிகவும் பயந்து நடந்தான். परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। சோதரம் ஊழியக்காரர்கள் சில நேரங்களில் சோதரம் பல தேவையோடு காணப்படும் பொழுது जब कभी कोई सेवक कई समय अनेक जरूरत के साथ रहते समय ஊழிய பாதிலே தேவை இருக்கலாம், सेवकों के मार्ग में जरूरत हो தனிப்பட்ட सकता है, பல தேவைகள் இருக்கலாம். उनके व्यक्तिगत जीवन में जरूरत हो सकता எப்படிப்பட்ட है, தேவைகளா இருந்தாலும் किसी भी प्रकार की जरूरत क्यों ना हो, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் जो प्रभु का भय मानता அதை है, அறிந்து वे लोग जानकर ஊழியர்களுக்காக சோதரம் ஊழியர்களுக்காக அவர் எதையும் கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமா இருப்பார்கள். अपने सेवक यानी दास को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளை जो कोई प्रभु का भय मानता है, அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கிறது மாத்திரமல்ல, आशीष केवल नहीं, சோதரம் ஆண்டவருக்காக கொடுப்பதற்கும் அப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் ஆண்டவர் கொடுக்கிறவராக காணப்படுகிறார். परमेश्वर के लिए देने के लिए उन्हें प्रभु उपयोग करता है। நீங்க உபாகத்துல வரும் பொழுது जब आप व्यवस्था विवरण में आते हैं, உபாகமம் 14ஆம் அதிகாரம் व्यवस्था विवरण अध्याय 14 அங்க 22 29 வசனம் வாசிக்கும் பொழுது उसका 22 से लेके 29 वचन तक पढ़ते அங்க समय சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वहाँ पे कहा गया है, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு எப்பொழுது பயந்திருக்கும்படிக்கு तू निरंतर परमेश्वर का भय मानने के நீ लिए வருஷந்தோறும் तू प्रति वर्ष நீ விதைக்கிற விதைப்பினால் जो बीज तू उपजाता है, வயலில் விளையும் எல்லா பலனிலும் तेरे खेत में के सारी उपज में தசம பாகத்தை நீ பிரிக்க வேண்டும். दशमांश करके उसे अवश्य अलग करके, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. அதை யாரு கொடுக்க வேண்டும்? उसे किसे देना चाहिए? லேவியருக்கு உன்னோடு பங்கும் சுதந்திரம் இல்லாதபடியினால लेवियों के भाग उसमें नहीं है, इसीलिए அவனை கைவிடாயாக. उसे मत छोड़ना। 3ஆம் வருஷத்தின் முடிவிலே तीसरा वर्ष के अंत में அவசரத்தில் உனக்கு வந்த பலன் எல்லாவற்றிலும் जो तेरे लिए प्रतिफल आया है, தசம பாகத்தை பிரித்து दशमांश को अलग உன் करके வாசல்களிலே வைக்க கடவாய். तू अपने द्वार पर रखना। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க, மோசேயின் மூலமாக ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கட்டளையிடுகிறார். मूसा के द्वारा परमेश्वर आज्ञा देता है, நீ லேவியனை கைவிட கூடாது. लेवियों को हाथ न छोड़ना, லேவியனை கைவிடாதபடிக்கு लेवियों को न छोड़ते நீ हुए அவர்களுக்கு நீ உதவி செய்ய வேண்டும். उनके साथ तुझे देना चाहिए। லேவியனுக்கு உன்னோடு கூட சுதந்திரமும் பங்கும் இல்லாதபடினால मेरे साथ उनका कोई भाग या अंश न होगा, அவனும் वो भी உன் வாசலில் இருக்கிறதான तेरे फाटक के भीतर रहने वाला, பரதேசியும் वो जो परदेशी, திக்கற்றவனும் अनाथ, விதவையும் विधवाएं, நீ அதை பெற்றுக்கொண்டு वो पाकर அதை புசித்து திருப்தியாவார்கள். पेट भरकर खाएं। இதுல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, पीछे कहा गया है, அப்பொழுது तब உன் கை செய்யும் வேலையிலெல்லாம் तेरे हाथ की
के कामों உன் पर தேவனாகிய கர்த்தர் तेरा परमेश्वर यहोवा உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். तुझे आशीष देगा। ஆமென். हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகள் परमेश्वर का भय मानने वाला என்ன व्यक्ति செய்ய வேண்டும் சொன்னால் क्या करता है? ஊழியத்தை அவர்கள் தாங்குவார்கள். सेवक लोगों को हाथ बटाते हैं, கர்த்தருடைய கட்டளைக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிவார்கள். परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, கர்த்தர் கட்டளை கீழ்ப்படிந்து परमेश्वर का आज्ञा को मानकर ஆண்டவருக்காக परमेश्वर के लिए அவர்கள் செய்வதற்கு जो उपयोग करते हैं எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருப்பார்கள். हमेशा तैयारी में இன்னைக்கு रहते हैं। பாருங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்னால आज इस कोरोना वायरस के कारण எத்தனையோ ஊழியக்காரங்க பாதிக்கப்பட்டு आज இருக்கிறார்கள். कितने सेवक लोग बहुत ही कष्ट में हैं। எத்தனை ஊழியக்கார குடும்பங்கள் இன்னைக்கு பலவிதமான கஷ்டத்தின் பாதையில போய் கொண்டிருப்பதை நம்மளால கேட்க முடிகிறது. कितने सेवकों के परिवार कष्ट में डूबे हैं, हम अपने कानों से ஏனென்று सुन सकते சொன்னால் हैं। क्योंकि அவர் ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்தவர்கள் वे परमेश्वर की पूरी तरह से अर्पण உலக किए வேலையை விட்டுவிட்டு काम सब छोड़कर ஆண்டவரே நம்பி வந்திருக்கிறபடினால केवल प्रभु पर ही भरोसा करके இந்த आए। உபத்திரத்தின் நாட்களிலும் கூட इस तकलीफ के दिन में भी அவர்கள் பலவிதமான பிரச்சனைகளா போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். कई प्रकार की समस्या के बीच में जा रहे हैं। தேவைகள் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். वे लोग भी जरूरत के बीच में चल रहे हैं। இப்படிப்பட்ட ஊழியர்களை கண்டுபிடித்து ऐसे सेवकों ने जानकर அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும். उनको मदद करना அது जरूरी யார் है। செய்வார்கள்? कौन करेंगे? உபதியாவை போல उपद्या के जैसा மிகவும் பயந்து நடக்கிறவர்கள். जो हमेशा प्रभु का भय करने वाले। ஆமென். हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் परमेश्वर का भय रखने वाला ஆண்டவருடைய ஊழியத்திற்காக அவர்கள் செய்வார்கள். परमेश्वर के सेवकों के लिए कुछ भी करेंगे। வேதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वचन कहता है ஒருவனுக்கு ஊழியம் செய்தான் कोई व्यक्ति मेरी सेवा करे, பிதாவானவர் அவனை கனப்படுத்துவார். पिता आदर उसे करेगा। எத்தனை ஊழியர்கள் தேவையோடு இருக்கிறாங்க. आज कितने सेवक लोग कई जरूरत से हैं। பலவிதமான சோத்திரம் தேவைகளுக்கு ஐங்கி நின்று கொண்டு कई இருக்கிறார்கள். प्रकार की जरूरत के लिए लोग तड़प रहे हैं। கர்த்தருக்கு பயந்திருக்கிற பிள்ளைகள் जो प्रभु का भय मानने वाले அவருடைய हैं, கைகளுக்கு அவருடைய கைகளை நம்ம தளர விடாதபடிக்கு उनका हाथ ढीले ना होते हुए நாம் அவளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். हम उनकी मदद करना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। லேவியனே लेवियों நீ को கைவிடாயாக என்று சொல்லி तू न छोड़ना कहकर கர்த்தர் அங்க கட்டளையிடுகிறார். परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம அப்படி செய்யும் பொழுது जब हम ऐसा करेंगे, கர்த்தருக்கு பயப்பட அப்படி செய்யும் பொழுது जो प्रभु का भय खाने वाले ऐसा உங்க करेंगे, கையில் செய்யும் வேலையில எல்லாம் तुम आपके हाथ के कामों में सब கர்த்தர் உங்களை அவர் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के जनों, ஆண்டவர் परमेश्वर இந்த நாட்களில் आज के दिन में அவருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளை அவர் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். उसका भय मानने वाला व्यक्ति को प्रभु जो ढूंढ रहा है, அவருக்கு பயப்படும் பொழுது जब उसका भय मानेंगे பாருங்க तो देखिए ஒரு அர்ப்பணிப்பின் வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ்வார்கள். एक अर्पण का जीवन वो जिएंगे। ஆண்டவருக்காக பயப்படும் பொழுது जब परमेश्वर का भय मानेंगे, ஊழியர்களுக்கு அவர்கள் செய்வார்கள். सेवकों और सेवकाई के लिए लोग मदद करेंगे। இப்படிப்பட்டதான ऐसे कार्य ஒரு காரியங்களை ऐसे कार्य செய்யும்படியாக करने के लिए கர்த்தர் இந்த வாரம் நம்மோடு அவர் பேசிக் इस கொண்டிருக்கிறார். हफ्ते प्रभु हमसे बात कर रहा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது जब हम ऐसा करेंगे, உங்க கையின் तो பிரயாசங்கள் आपकी हाथ की काम, நீங்கள் ஏறெடுக்கிறதான நல்ல காரியங்கள் இல்ல जो कुछ आप अच्छे काम के लिए हाथ बढ़ाएंगे, எல்லாவற்றிலும் सभी कार्य கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष கர்த்தர் करेगा। உங்களை போஷிப்பார். प्रभु आपको खिलाएगा। நீ வாங்காமல் தரையாவாய். आप पूछ नहीं सर நீ होंगे, கீழாகாமல் மேலாவாய். आप नीचा नहीं ऊंचा நீ होंगे। அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய். अनेक लोगों को उधार நீயோ दोगे, கடன் வாங்காதிருப்பாய். परंतु आप उधारी नहीं இந்த दोगे। வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் ये प्रतिज्ञाएं सब உங்களுடைய வாழ்க்கையில आपके जीवन உங்களுடைய में, குடும்பத்துல आपके परिवार में, நீங்கள் செய்கிறதான வேலைகளில आप लोग जो करने वाले कामों में, எல்லாவற்றிலும் அது உண்டாகும். उसमें सफल होगा, அது நிறைவேறும். पूरा होगा। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। மூன்றாவது நம்ம பார்ப்போம், तीसरा हम देखें, பாவத்தை அருவருத்து அதை விட வேண்டும். पाप को तुच्छ जानकर उसे छोड़ देना चाहिए। நீதிமொழிகள் नीति वचन 8ஆம் அதிகாரம் अध्याय 8 13ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 13 वचन कहता है, தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம். बुराई से बैर रखना ही यहोवा का भय मानना है। பெருமையையும் घमंड, அகந்தையையும் अहंकार, தீய வழியையும் बुरी चाल से, புரட்டு வாயையும் उलट फेर நான் வெறுக்கிறேன். की बातों से मैं बैर रखता हूँ। சாலமோன் ஞானிங்க அழகாக சொல்லுகிறார், सुलेमान ज्ञानी कहता है, கர்த்தர் எந்த காரியங்களை அவர் வெறுக்கிறார்? परमेश्वर जिन जिन कार्य से बैर रखता है, தீமை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம். बुराई से
बैर रखना ही यहोवा का भय मानना அப்ப है। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகள் जो परमेश्वर का भय मानता है அவர்கள் பாவத்தை அருவருத்தவர்கள் விட்டு விடுவார்கள். पाप को तुच्छ जान लेते हैं और छोड़ देते हैं। பெருமை என்கிறதான பாவம் இருக்கிறது, घमंड नाम का भी पाप है, அகந்தை என்கிறதான ஒரு பாவம் இருக்கிறது, अहंकार नाम का भी पाप है, தீய வழி என்கிறதான ஒரு பாவம் இருக்கிறது, बुरी चाल नाम का भी एक पाप है, புரட்டு வாய் என்கிறதான பாவம் இருக்கிறது. उल्टा बात करने वाला भी एक पाप है। இதையெல்லாம் கர்த்தர் வெறுக்கிறார். ये सब कुछ परमेश्वर नफरत करता है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனிதர்கள் जो कोई परमेश्वर का भय मानता है அவர்கள் வந்து वे लोग கர்த்தருக்கு பயந்து परमेश्वर का भय मानते அவர்கள் हैं, பாவத்திற்கு விலகி ஓடுவார்கள். पाप से दूर भागते இல்லை हैं, சொன்ன பாவத்தை அவர்கள் வெறுப்பார்கள். पाप से वो लोग नफरत करते ஏன் हैं, என்று சொன்னால் क्योंकि நீங்கள் நானும் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் आप और मैं आराधना करने वाला அவர் परमेश्वर பாவத்தை பார்க்காதவர் சுத்த கண்ணர். पाप को न देखने वाली शुद्ध आंखें हैं। அவர் பாவிகளை वो நேசிக்கிறார், पापियों से प्यार करता ஆனால் है, பாவத்தை அவர் வெறுக்கிறார். लेकिन पापों को नफरत करता அப்போ है। நம்மகிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறார் அவர்? तो हमसे वो क्या चाहता है? கர்த்தருக்கு பயப்படுற பிள்ளைகள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? जो परमेश्वर का भय मानता है उनसे प्रभु क्या चाहता நாம் है? கர்த்தர் பாவத்தை நம்ம வெறுக்க வேண்டும். हम भी पाप को नफरत करना பெருமை चाहिए। என்கிறதான அந்த பாவம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது, घमंड नाम का पाप नहीं होना चाहिए, அகந்தை இருக்கக்கூடாது, अहंकार नहीं होना चाहिए, சோத்திரம் புரட்டுவாய் இருக்கக்கூடாது. उल्टी बातें नहीं होना चाहिए। சிலவங்க பாருங்க, कुछ लोगों को देखिए, அவங்க பேச ஆரம்பிச்சாலே போதும், अगर बात करने शुरू किया तो சோத்திரம் புரட்டி புரட்டி பேசுவாங்க. उल्टा उल्टा कुछ भी बात करते हैं। பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। நம்மகிட்ட ஒண்ணு பேசுவாங்க, हमारे पास एक बात करते हैं, நம்மகிட்ட பேசின காரியத்தை जो हमसे उन्होंने बात की है அப்படியே वैसे ही மற்ற இடத்துல போய் दूसरे के पास जाकर இன்னும் அதற்கு பல வார்த்தைகளை வைத்து और भी कई शब्द जोड़कर பல வார்த்தைகளை சொல்லி और भी कई बातें இருக்கிற बताकर பிரச்சனைகளையும் जो समस्या है இன்னும் கூட ஆக்கிடுவார்கள். और भी बढ़ा देते हैं। இது ஒரு பாவம். ये भी एक पाप है। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वचन में कहा गया உன் है ஜனங்களிடையே तेरे लोगों के बीच நீ में எங்குமே कहीं भी கோடி சொல்லி நீ திரியாயாக. चुगली करके न घूमना। நீ அநேகர் அதுல ஒரு சோத்திர இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறது, आज उनमें अनेक लोग को मजा आता நீ है அநேகருக்கு அது ஒரு பழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள். और कुछ लोग उसकी आदत भी बनाया அது है। அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கை கூடயே பிறந்து இருக்கிறது. वो उनकी जिंदगी के साथ जन्म लिया है। இங்கு உள்ளது அங்க சொல்லுவது, यहाँ की बात वहाँ இந்த बोलना, குடும்பத்தை குறித்து அங்க கெடுத்து பேசுவது, ये परिवार की बात दूसरे के पास जाके சோதனை बोलना। இப்படியாக சபைகளிலே குழப்புறவர்கள் இந்த நாவிடு இருக்கிறார்கள். ऐसे कलीसिया में भी बिगाड़ने वाले लोग हैं। அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள், वे लोग प्रार्थना तो करते हैं, அந்நிய பாஷையில பேசுவார்கள், अन्य भाषा भी बोलते हैं, பரிசுத்தாவிலே நிரம்புவார்கள், पवित्र आत्मा से भी भरते हैं, சபைக்கு வருவார்கள். कलीसिया में आते हैं, ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையானது लेकिन उनका जीवन जो है புரட்டுவாயாக காணப்படும். उल्टा उल्टा बात करते हैं। இருக்கிற பிரச்சனைகளை, जितना तकलीफ अभी है, இருக்கிற பாடுகளை जो तकलीफ में अभी அவர்கள் गुजर रहे हैं, இன்னுமாக சொல்லி और भी बढ़ाकर இன்னும் பெரிய பிரச்சனையாக மாற்றி விடுவார்கள். बहुत बड़ा समस्या कर देते हैं। அதுக்கு அவர் அதை பார்த்து ரசிப்பார்கள். उसे देखकर उन्हें बड़ा मजा ஒரு आता है। குடும்பம் கஷ்டப்படும் பொழுது, जब एक परिवार दुख में रहता ஒரு है, குடும்பம் உடையும் பொழுது, जब एक परिवार टूटता है, ஒரு சபையில பிரச்சனை வரும் பொழுது, एक कलीसिया में कुछ समस्या होता அதை है, பார்த்து ரசிப்பவர்கள் உண்டு. उससे देख के मजा करने அது वाला ஒரு बहुत பாவம். है। वो भी एक पाप है। ஆண்டவர் அதை வெறுக்கிறார். उससे परमेश्वर नफरत करता है। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகள் जो कोई प्रभु से भय मानते அது हैं, பாவத்தை வெறுக்க வேண்டும். उस पाप को भी नफरत நீங்க करना பாவம் चाहिए। என்று சொன்ன உடனே आज पाप कहते हैं, சிகரெட் குடிச்சாதான் பாவம் என்று நினைக்கிறார்கள். सिगरेट पीने वाले पाप कहते हैं, சோத்ரம் அது மாத்திரம் சாராயம் குடிச்சாதான் பாவம் நினைக்கிறார்கள். मधु पीते हैं, उससे भी कहते हैं कि पाप है। வேதத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वचन साफ साफ कहती है, புரட்டு வாயும் பாவம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, उल्टा बातें करना भी पाप है, பெருமையும் பாவம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. घमंड भी पाप है। இதை வெறுக்க வேண்டும். इससे नफरत करना चाहिए। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நம்மளால ஒரு ஒரு குடும்பத்தை நம்மளால இணைக்க முடியும்னா இணைக்க வேண்டும். अगर हमसे एक परिवार को जुड़ा सकते हैं तो जुड़ाना है। நம்மளால ஒரு குடும்பத்துல சமாதானம் உண்டாக வேண்டும் என்று சொன்னால் சமாதானம் பேச வேண்டும். अगर हमारे से एक परिवार में शांति हो पाती है तो करना चाहिए, இல்லை என்று சொன்னால் नहीं तो நாம் அதை விட்டு விட வேண்டும். नहीं तो छोड़कर நாம் जाना है। அமைதியா இருப்பது நல்லது. शांत बैठना ही बेहतर है। ஆண்டவர் परमेश्वर இந்த எல்லா பாவங்களையும் इन सब पापों को அவர் வெறுக்கிறார். वो नफरत करता ஆனா है। உண்மையாகவே लेकिन ஒரு सच्चाई மனுஷன் से கர்த்தருக்கு பயப்படுவான் என்று अगर சொன்னார், परमेश्वर का एक व्यक्ति भय मानता அவன் है, கர்த்தருக்கு பயந்து நடப்பான் என்று சொன்னால் अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का भय அவன் मानकर चलता है, பாவத்தை அவன் அருவருப்பான். पाप को नफरत
नफरत करता है। ஹalleluya हालेलुया। அவருடைய உள்ளத்துல उसका हृदय அவன் में கர்த்தரை அவன் பிரியப்படுத்துவான் परमेश्वर को प्रिय मानता எந்த है। அசுத்தமான காரியங்களை அவன் செய்ய மாட்டான் कोई भी अशुद्ध कार्य नहीं எந்த करेगा। பாவங்களை அவன் செய்வதற்கு அவன் யோசிப்பான் कोई पाप करने के लिए वो सोचेगा தன்னுடைய உள்ளத்துல अपना मन में நான் பரிசுத்தமாக வாழ मैं வேண்டும் पवित्र से जीना चाहिए। பரிசுத்த தேவனை ஆராதிக்கிறேன் मैं पवित्र परमेश्वर की आराधना நான் करता அவரை हूँ। காண வேண்டும் मैं उसे देखना चाहता நான் हूँ। அவருடைய வழியில நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி मैं उसे उसके चलते में चलना அவன் चाहिए। தீர்மானம் பண்ணி உலகத்துல வாழ்க்கை நடத்துவான் निर्णय करके वो चलता है। கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் जो परमेश्वर का भय मानता நம்முடைய है உள்ளத்தில் இருக்கும் பொழுது जब हमारा अंदर है அவனை ஜனங்களை நேசிப்பார்களவர்கள் लोगों से प्रेम रखेंगे। உலக சிற்றின்பங்கள் संसार के अभिलाषा உலக பாவங்கள் संसार का प्यार எல்லாவற்றையும் வெறுத்து ये सब नफरत करके ஆண்டவருக்காக பரிசுத்த வாழ ஒப்பு கொடுப்பார்கள் परमेश्वर के लिए पवित्र से जीना चाहेंगे। ஹalleluya हालेलुया। நாம் எப்படி இருக்கிறோம் हम कैसे हैं? நாம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் हम परमेश्वर का भय मानते நான் कहते हैं। சரியாக சோதர ஆராதனைக்கு போகும் என்று சொல்லுகிறோம் हम कहते हैं मैं सही समय में चर्च में जाता நாம் हूँ, வேதத்தை படிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் मैं बाइबल पढ़ता हूँ कहते हैं। ஆனாலும் लेकिन சில நேரங்களில कभी ஒரு कभी மாய்மாலமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் एक झूठा जिंदगी जीते हैं। நம்மளால எத்தனை குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் हमारे वजह से कितने परिवार पीड़ित இது ஒரு हैं। பாவம் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ये भी एक पाप है। ஒரு காரியம் சொல்ல விரும்புகிறேன் एक बात आपसे कहना चाहते हैं। ஒரு 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 மனுஷனை குறித்து வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது एक मनुष्य के बारे में वचन साफ कहते हैं। யோசேப்பை குறித்து தெரியாமல் இருக்க முடியாது यूसुफ के बारे में कोई अनजान नहीं है। யோசேப்பை அவருடைய சகோதரர்கள் यूसुफ को उसके भाई लोग அவர்கள் அடிமையாக விற்று விட்டார்கள் उसके गुलाम में उसे बेच दिया। அடிமையாக விற்ற யோசேப்பை रास्तों में बेचा गया यूसुफ அவனை வழியில விற்று விட்டார்கள் उसको मार्ग में ही बेच दिया। அவர்கள் போத்திபார் வீட்டுல சோதரை இப்போ அடிமையாக அங்க யோசேப்பு வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் यूसुफ पोतीफार के घर पर वो जो गुलाम बनकर है। போத்திபாரின் மனைவி पोतीफार का पत्नी எப்படியாவது யோசேப்பை பாவத்துல சிக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி किसी भी तरह उसे अपने जाल में फंसाने के लिए அவருடைய வலையில சிக்க வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி उसके जाल में फंसाने के लिए யோசேப்பு போத்திபாரின் மனைவி அவள் மேல் கண் போடுகிறாள் पोतीफार की पत्नी उस पर नजर डालती है। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। அந்த யோசேப்பை பாருங்க लेकिन यूसुफ को அவன் देखिए சொல்லுகிறான் कहता ஆதியா है 39:9 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது उत्पत्ति 29 अध्याय उसका 9 वचन में இந்த कहा है வீட்டில் इस घर में என்னிலும் मुझसे பெரியவன் இல்லை बड़ा कोई नहीं। நீ அவருடைய மனைவியா இருக்கிறபடியினால் उसके तेरी तू उसकी पत्नी है। உன்னை தவிர வேறொன்றையும் அவர் எனக்கு விலக்கி வைக்கவில்லை मुझसे कुछ और नहीं रख छोड़ा। இப்படி இருக்க इसीलिए நான் இத்தனை பெரிய பொல்லாங்குக்கு உடன்பட்டு भला मैं ऐसा बड़ी दुष्टता करके தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்வது எப்படி मैं परमेश्वर का अपराधी कैसे बनूं? கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் परमेश्वर का भय मानने वाला அவன் தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்ய மாட்டான் परमेश्वर का विरोध पाप नहीं करेगा। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। அவன் பரிசுத்தமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடப்பதற்கு ஒப்பு கொடுப்பான் वो पवित्रता से जीवन बिताने के लिए अपने आप को सौंपेगा। அவன் சொல்லுகிறான் कहता है இத்தனை பெரிய பொல்லாப்பை நான் எப்படி செய்ய முடியும் इतना बड़ा अपराधी दुष्टता में कैसे करूं? நான் தேவனுக்கு விரோதம் எப்படி நான் பாவம் செய்ய முடியும் परमेश्वर का विरोध में कैसा काम करूं? அவன் பாவத்திற்கு விலகின ஓடுபடினால पाप का विरोध दौड़ा தன்னை इसलिए பரிசுத்தமாக பாதுகாத்தபடினால अपने आप को पवित्र समझा அவன் इसीलिए அர்ப்பணித்தபடினால उसने अर्पण किया इसीलिए யோசேப்பு பாருங்க यूसुफ அவன் குற்றம் சாட்டப்பட்டவனாக दोषी लगाया। அவன் சிறைச்சாலையில் उसे அடைக்கப்பட்டான் बंदीगृह में भी डाला அவன் गया। சிறைச்சாலை இருந்தான்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது वचन में कहता है वो बंदीगृह में डाल दिया ஆனா गया। சிறைச்சாலையிலும் लेकिन बंदीगृह में வேதத்துல வாசிக்கலாம் वचन में कहा गया है கர்த்தர் யோசேப்போடு கூட இருந்தார் परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। ஆமென் हालेलुया। யோசேப்போடு கூட இருந்தார் यूसुफ के संग था। சிறைச்சாலைக்காரன் தயவு அவனுக்கு கிடைத்தது बंदीगृह के दरोगों के ऊपर अनुग्रह दृष्टि கர்த்தர் मिली। அவனோடு இருந்தபடினால परमेश्वर उसके संग था। அவன் எதை செய்தானோ जो कुछ करता था கர்த்தர் அதை வாய்க்க பண்ணினார் परमेश्वर उसको सफल करता गया। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளோடு கூட கர்த்தர் இருப்பார் जो कोई परमेश्वर का भय मानता है उसके संग परमेश्वर रहता ஆண்டவர் है। யோசேப்போடு கூட சிறைச்சாலையில் இருந்தார் परमेश्वर यूसुफ के साथ उस बंदीगृह में भी था। சிறைச்சாலைக்காரனுடைய தயவு அவனுக்கு கிடைத்தது उस बंदीगृह के दरोगों की आंखों में दृष्टि அவனுக்கு मिली। அந்த தயவு கிடைத்தபடினால उसके अनुग्रह मिलने के कारण கர்த்தர் யோசேப்பை परमेश्वर यूसुफ को
அந்த எகிப்து தேசத்திலே इस मिस्र देश में அவனை அதிபதியாக உயர்த்தினார். उसे परमेश्वर प्रधानमंत्री बनाया। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகள் परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति பாவத்திற்கு அவர்கள் விலகி ஓடுவார்கள். पाप के लिए दौड़ेंगे। பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। பாவத்தை விட்டு வெறுப்பார்கள். पाप से नफरत करेंगे। பாவத்திற்கும் அவர்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது. पाप का उनका कोई भी संबंध नहीं ஏனென்று होगा। சொன்னார், क्योंकि நான் ஆராதிக்கிறவர் பரிசுத்தமுள்ள தேவன். क्योंकि हम आराधना करने वाला परमेश्वर पवित्र நான் है। ஆராதிக்கிற தேவனை துக்கப்படுத்த மாட்டேன். हम आराधना करने वाला परमेश्वर को मैं दुखित என்னை नहीं ரட்சித்த करूंगा। தேவனை துக்கப்படுத்த மாட்டேன் मुझे उद्धार किया और मुझे अभिषेक किया परमेश्वर को मैं दुखित नहीं என்று पहुंचाऊंगा। சொல்லி ऐसा அவர் कहकर பரிசுத்தமாக நடக்கும்படியாக தங்களை அர்ப்பணிப்பார்கள். अपने आप को पवित्र के लिए वे लोग समर्पण करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு உலகத்துல பாவங்கள் நிரம்பிக் கொண்டு இருக்கிறது. आज दुनिया में पाप बहुत बढ़ चुकी எங்கு है। பார்த்தாலும் பாவங்கள், जिधर भी देखो पाप है। எங்கு பார்த்தாலும் இன்னைக்கு விபச்சாரங்கள் பெருகிக் கொண்டு இருக்கிறது. जिधर भी देखो वो विचार बढ़ते ही जा रहे எங்கு हैं। பார்த்தாலும் பலவிதமான பாவங்கள் தேசத்துல இன்னைக்கு தலைவிரித்தாடி கொண்டு இருக்கிறது. जहाँ भी देखो पाप देश भर चुका है। இன்னைக்கு மனிதனாக இல்லை. आज मनुष्य जैसा நீ नहीं மனுஷோட है। வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் இல்லை. मनुष्य के जीवन में पवित्र नहीं है। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லை. परमेश्वर का भय जीवन नहीं है। நம்மை பார்க்கிற ஒருவர் இருக்கிறார். हमें देखने वाला व्यक्ति है। நம்மை காண்கிற ஒருவர் இருக்கிறார் हमें नजर लगाने वाले व्यक्ति है। என்ற சொல்லி எண்ணம் இல்லாதபடிக்கு ऐसा न सोचते தன்னுடைய हैं। மனம் போதும் போக்கில வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். अपने ही मन की इच्छा के அந்த अनुसार கர்த்தருக்கு चलते हैं। பயப்படுகிற மனுஷர்கள், जो परमेश्वर का भय मानता है, தேவனுக்காக வைராக்கியம் இருக்கிறவர்கள் परमेश्वर के लिए जो या बांध कर रहते என்ன हैं, செய்வார்கள்? क्या कहते हैं? பாவத்தை அருவருப்பார்கள். पाप से वे लोग नफरत करेंगे। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। பாவத்தை அருவருத்து पाप से नफरत அந்த करके பரிசுத்தமான தேவனிடத்தில் அவர்கள் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்வார்கள். पवित्र परमेश्वर के पास सौंप देंगे। ஹalleluya. हालेलुया। பரிசுத்தம் இல்லாமல் जो पवित्र के बिना ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. कोई भी परमेश्वर को नहीं देख அது पाएंगे। எப்பேற்பட்ட மனுஷனாய் இருந்தாலும், चाहे किसी भी प्रकार के அது मनुष्य क्यों ना हो, யாராக இருந்தாலும், चाहे कोई भी क्यों ना நம்முடைய हो, ஆண்டவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர். हमारा परमेश्वर पवित्र है। நாம் ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள் हमारा आराधना करने वाला நாம் परमेश्वर பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று हम சொல்லி पवित्र से रहना है அவர் करके விரும்புகிறார். वो चाहता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அது பரிசுத்தமாக வாழும் பொழுது ऐसे पवित्र से हम जिएंगे तो கர்த்தர் யோசேப்பை परमेश्वर ने यूसुफ அந்த को எகிப்து தேசத்தில் அதிபதியாக்கினது போல इस मिस्र देश में प्रधानमंत्री बनाया। நம்மளையும் हमें भी உங்களையும் आपको भी அவர் அவ்விதமாக அவர் உயர்த்துவார். इसी प्रकार आपको ऊंचा करेगा। Praise the Lord. हालेलुया। அவர்களை உயர்த்தும்படியாக आपको ऊंचा रहने के लिए அவருடைய பலத்த கைக்குள்ளாக அடங்கி இருங்க. उसकी बलवंत हाथों में हमें छिपा रहना நாம் है। அவருக்கு பயந்து அடங்கி இருப்போம். हम उसका भय मानकर छिपे சில हैं। நேரங்களில் உங்களுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். कई समय बहुत कष्ट आता है। ஆண்டவருக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று சொன்னா கஷ்டமா தான் இருக்கும். परमेश्वर का भय मानो बोलेगा तो थोड़ा तकलीफ ही होता है। ஆனாலும் फिर भी நாம் கர்த்தருக்கு பயந்து நாம் நடக்க வேண்டும். परमेश्वर का भय मानकर வேதத்தில் அழகாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वचन में साफ-साफ ஒரு कहा है। சங்கீதம் முழுவதுமே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. एक भजन संहिता पूरी तरह से சங்கீதம் कहा है। 128 எல்லாருக்கும் தெரிந்த சங்கீதம். भजन संहिता 128 आप सब लोग அங்க என்ன जानते हैं। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? इसमें क्या कहा அங்க गया है? அங்க அழகாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. यहाँ पे लिखा गया அந்த है। வசனங்களை வாசி பார்க்கலாமா? हम वचन देखेंगे। கர்த்தருக்கு பயந்து जो परमेश्वर का भय அவர் मानता வழி है, நடக்கிற எவனோ उसके मार्ग पर जो चलता है அவன் பாக்கியவான். वो धन्य है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லப்பட்டு वो இருக்கிறது. धन्य करके कहा गया இந்த है। மனுஷன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறானோ जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है அவன் பாக்கியவான். वो धन्य है। அவன் கைகளின் பிரயாசத்தை वो சாப்பிடுவான். अपनी हाथ की कमाई को खाएगा। உனக்கு பாக்கியம் நன்மை உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. धन्य और भला होगा करके कहा गया है। அப்ப ஆண்டவர் परमेश्वर அந்த குடும்பத்தவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். उस परिवार को आशीष करता இந்த है। வசன திருமண இதிலே வாசிப்பார்கள். इस वचन को विवाह के घर में पढ़ते हैं। மணமக்களை வாழ்த்துவார்கள். दूल्हा दुल्हन को वो लोग अभिवादन देते हैं। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளை जो कोई परमेश्वर का भय मानते அங்க हैं, அழகாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. यहाँ पे साफ-साफ कहा है, உன் மனைவி तेरी स्त्री உன் வீட்டோர்களை கனிதரும் திராட்சை கொடி போல் இருப்பாள். तेरी भीतर घर के भीतर फलबन धाकलता होगी। உன் பிள்ளைகள் तेरी बालक உன் பந்திய சுற்றிலும் ஒளிவு மர கன்றுகளோ போல இருப்பார்கள். मेष के चारों पर जलपाई पौधे के समान होगी। இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுற மனுஷன் सुन जो यहोवा का भय मानता है, இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிப்பார். ऐसे ही आशीष எவ்வளவு பெரிய पाएगा। ஆசீர்வாதம் பாருங்க. इतना बड़ा आशीष है। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளை जो परमेश्वर का भय मानता है, அநேகமாக ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर बहुत आशीष देता அவர்களை है। உயர்த்துகிறார். हमें ऊंचा रखता है। கர்த்தர் சீயோனில் ஆசீர்வதிப்பார். वो उसे सिय्योन से आशीष दे। ஜீவனாலெல்லாம் जीवन भर எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாண்டு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. यरूशलेम को कुशल को देखता है। ஆம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के जनों,
அவருக்கு பயந்து जो उस पर भय அவருடைய मानता है, வழிகளிலே उसके मार्गों में நாம் நடக்க வேண்டும். हमें चलना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। நடக்கும் பொழுது जब ऐसा இந்த चलेंगे, வசனத்தை சொல்லி ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் जो इस वचन में आशीषें कहा உங்களுடைய है, குடும்பத்துல आपके परिवार இதை में, கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற குடும்பத்துல ये सुनने वाले आपके परिवार ஆண்டவர் में செய்வதற்கு அவர் போதுமானவர். करने में परमेश्वर काबिल है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இவன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் तू अपने जो बच्चे के बच्चों को இஸ்ரவேலுடைய சமாத காண்பாடு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. इस्राएल में रहने वाले शांति को देखेगा। கர்த்தருக்கு பயந்து तू अपने बच्चों को, तो अपने परमेश्वर का भय எந்த ஒரு मानता है। மனுஷன் நடக்கிறானோ जो कोई व्यक्ति चलता है, நம்மளால பார்த்தோம் पहले हमने देखा அவர்கள் वे लोग தங்களையே அர்ப்பணிப்பார்கள். अपने आप को अर्पण करेंगे। இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது दूसरा हमने देखे கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் जो परमेश्वर का भय मानता है, ஊழியர்களை ஆதரிப்பார்கள். सेवकों और सेवकाई को मदद करेंगे। மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கிறோம் तीसरा हमने देखे பாவத்தை அறிவுறுத்தி விட வேண்டும். परमेश्वर का भय, जो पाप से वे लोग नफरत எந்த करेंगे। ஒரு மனுஷன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறார்களோ जो कोई मनुष्य परमेश्वर का भय मानता அவர்கள் है, பாவத்தை விட்டு விட வேண்டும். वे लोग पाप को नफरत करेंगे। பாவத்தை விட்டு விடும் பொழுது जब नफरत करेंगे, ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல परमेश्वर इस दुनिया में நம்மளை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துகிற தேவனா इस காணப்படுகிறார். प्रकार आशीष करके हमें ऊंचा அந்த करेंगे। 127 சங்கீத ஆசீர்வாதங்கள் 128 की जो वचन की आशीष அந்த है, நன்மைகள் वो भलाइयाँ, எந்த ஒரு மனுஷன் கர்த்தருக்கு பயந்து जो कोई मनुष्य प्रभु का भय அந்த मानता வழியில் है, நடக்கிறானோ उसके मार्ग में அந்த चलता ஆசீர்வாதம் है, அப்படியே அவர் வாழ்க்கையில நடக்கும். वही आशीष उनके परिवार में सफलता होगी। கர்த்தர் ஒரு குறையில்லாதபடிக்கு परमेश्वर कोई भी कमी के உங்களை बिना அவர் ஆசீர்வதிப்பார். आपको आशीष करेंगे। பஞ்ச காலத்திலும் अकाल के समय உங்களை அவர் போஷிப்பார். आपको खिलाएगा। நாம் கர்த்தருக்கு பயப்படுவோம். हम प्रभु का केवल भय माने। நாம் ஜெபிக்கலாமா? हम प्रार्थना करें, நம் கண்களை மூடி अपनी आंखें बंद करके, நாம் இருக்கிற இடத்துல जहाँ पर हम बैठे हैं, ஆண்டவரே प्रभु ஒருவேளை शायद நான் கடந்த வாரங்களில मैं पिछले हफ्ते உமக்கு பயப்படாமல் நான் வாழ்ந்திருக்கலாம். मैं आपका भय मानकर नहीं चला होगा, உமக்கு பிரியமில்லாமல் நான் வாழ்ந்திருக்கலாம். मैं आपका प्रिय बिना में चला உமக்கு होगा, விரோதமான ஏதோ ஒரு பாவத்தை நான் செய்து விட்டேன். आपका विरुद्ध कुछ पाप मैंने किया। வேதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது वचन कहता है, பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ அவைகளை पाता, அறிக்கையிட்டு उसे मानकर விட்டு விடுகிறவனோ और छोड़ देगा, இரக்கம் பெறுவான்னு சொல்லப்பட்டு वो இருக்கிறது. परमेश्वर से अनुग्रह पाएगा। தேவ சமூகத்துல परमेश्वर के चरणों में பாவங்களை அறிக்கையிட்டு पाप को कबूल करके அதை விட்டு விடும் பொழுது और उसे छोड़ देंगे, அவர் உங்களுக்கு இரக்கம் செய்வது மாத்திரமல்ல परमेश्वर केवल आपको दया ही नहीं, உங்களை அவர் ஆசீர்வதிக்கிற वो தேவன். आपको आशीष भी உங்களை करेगा, அவர் உயர்த்துகிற தேவன். वो आपको ऊंचा भी உங்களை करेगा। உங்களை आप ही को கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். थोड़ा जांच कर கடந்த देखिए, வாரங்களில पिछले हफ्ते में ஆண்டவரே परमेश्वर, நான் உம்முடைய வழியிலே நடக்கவில்லையா? मैं आपके जो चाल में चला हूँ உம்முடைய क्या? வழியை விட்டு நான் தூரம் போயிருக்கிறேனா? आपके मार्ग से मैं दूर हूँ உன் क्या? அன்பை விட்டு நான் தூரம் போயிருக்கிறேனா? मैं आपका प्रेम से मैं दूर गया நான் हूँ உமக்கு क्या? பயப்பட வாழ்ந்திருக்கிறேனா? क्या मैं आपका भय मानकर नहीं இந்த चला? கடைசி வாரத்துல इस आखिरी हफ्ते என்னை में அர்ப்பணிக்கிறேன் मैं ஆண்டவரே. अपने आप का अर्पण करता நாங்கள் ஒரு हूँ। புதிய மாசத்துக்குள்ளாக வருகிற நாட்களை பிரவேசிக்க போகிறோம். आने वाले दिनों में नए महीने में प्रवेश करने जा என்னுடைய रहे हैं। குடும்பத்துல मेरे परिवार 128 சங்கீத ஆசீர்வாதங்கள் भजन संहिता 128 की இந்த வாழ்க்கையில आशीष நிறைவேறும்படியாக हमारे जीवन में पूरा होने के என்னை लिए அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி अपने आप को मैं अर्पण करता ஆண்டவருடைய हूँ। வழியில நடக்கிறேன் என்று சொல்லி मैं आपके मार्ग में चलता நாம் हूँ। அந்த செந்தோடு கூட ऐसे ही मन நாம் से தேவ சமூகத்துல ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करें। எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हमसे अधिक प्रेम करने वाले पिता, அருமை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। கர்த்தருக்கு பயந்து परमेश्वर का जो அது भय வழியில் मानता है, நடக்கிற மனுஷனுக்கு ஆண்டவரே जो कोई उसके मार्ग में அந்த चलते நீர் हैं, தெருவில் போதிப்பாடு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. परमेश्वर आप जो मार्ग चाहते हैं वैसे आप உடைய चलाएंगे। பிள்ளைகளை நீர் தெருவில் போதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். आप अपने बच्चों को अपने मार्ग में चलाइए। ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிப்பீராக. हर एक बच्चों को आशीष कीजिए। அந்த துக்கத்தோடு இருக்கலாம், जो कोई दुख में है, பலவீனத்தோடு கூட जो இருக்கலாம், कोई कमजोर में है, வீட்டுல சமாதானம் இல்லாமல் அன்றரை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம். घर में शांति के बगैर जिए होंगे। சமாதானத்தின் தேவன் தாமே शांति का परमेश्वर ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் हर एक के घर पर சமாதான சந்தோஷத்தை கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். शांति और आनंद दीजिए। வாழ்க்கையை வெறுத்து अपने जीवन को नफरत ஆண்டவரே करके, இனிமே எனக்கு வாழ்க்கை வேண்டாம், मुझे अभी जिंदगी नहीं இந்த चाहिए, வாழ்க்கை எனக்கு வெறுப்பா இருக்குன்னு சொல்லுகிற ஜனங்களோடு பேசும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होती है ऐसे कहने वालों को परमेश्वर छू அவருடைய लीजिए। வாழ்க்கையில் ஒரு சுபிட்சம் கடந்து வருவதாக, उनके जीवन में आशीष आ ஒரு जाए, ஆசீர்வாதம் கடந்து வருவதாக, एक आशीष आ जाए, எல்லா பாவங்களையும் வெறுத்து सब पाप से नफरत உமக்கு करके பயப்படுற பிள்ளைகளாக நீ மாற்றும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். आपका भय मानने वाला बना दीजिए। இந்த மாசத்தின் கடைசி வாரத்தில் பிள்ளைகளை பிரவேசிக்கிறவர்களை கொடுத்தீங்க. इस महीने के आखिरी हफ्ता में प्रवेश करने को उनको मदद किए।
எல்லா துக்கங்கள் சந்தோஷமா மாறட்டும் ஆண்டவரே. सारे दुख आनंद में बदल உடைய जाए। தேவைகளை அற்புதமாக அதிசயமாக நீ போஷிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். उनकी जरूरत अद्भुत रीति से अपने खिलाइए। அப்படி தன்னை ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். अपने जलों को आप आशीष करके இந்த உலகத்தில் दीजिए। நடக்கிறதான காரியங்களை கண்டு பயப்படாதபடிக்கு, दुनिया में चलने वाली कार्यों को देख के न இந்த डरते हुए, வியாதிகளை கண்டு பயப்படாதபடிக்கு, बीमारी को देख के न डरते உமக்கு हुए, பயப்படும் பயத்தால आपका भय से பிள்ளைகள் வளரத்தக்கதாக, अपने बच्चे बढ़ने के लिए, வாழத்தக்கதாக जीने के लिए பிள்ளைகளை அர்ப்பணித்து நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. परमेश्वर अर्पण करके हम प्रार्थना ஒவ்வொரு करते ஒப்பு हैं। கொடுத்து நான் ஜெபிக்கிறேன். हमें को आपके पास सौंप के प्रार्थना ஆண்டவரே, करते हैं। प्रभु जी, பயத்தை கொண்டு வரும் ஆவிகளை, भय को ले आने वाली आत्मा को, எதிர்காலத்தை குறித்ததான பயத்தின் ஆவிகளை, उच्च भविष्य के बारे में भय को, சத்துருவின் கொண்டு வருவதான மரண பயத்தின் ஆவிகளை, शत्रु लेकर आने वाले भय को, மந்திர தந்திர ஆவிகளை, मंत्र तंत्र की आत्मा செய்வின को, கட்டுகளை, भावी की आत्मा, ஏவல் ஆவிகளை जादू गिरोह की आत्मा இயேசுவின் को, நாமத்தினால यीशु मसीह के नाम से நிர்மலமாக்கி நாங்கள் हम ஜெபிக்கிறோம். डांट की प्रार्थना करते எந்த हैं। மனுஷனுக்கும் பயப்படாதபடிக்கு, कोई भी मनुष्य को न डरते हुए, சத்துருவுக்கு பயப்படாதபடிக்கு, शत्रु को न डरते हुए, ஆண்டவரே, தேவன் பிள்ளைகளுக்கு தைரியத்தை கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर अपने बच्चों को हिम्मत दीजिए। சிறியவர்கள் பெரிய எல்லாரும் ஆசீர்வதிங்க. छोटे से लेके बड़े तक आशीष இந்த दीजिए। தேவையை சந்தித்து கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் उनकी ஜெபிக்கிறோம். जरूरतों को आप पूरा कीजिए। அற்புதமாக நடத்துங்கப்பா. अद्भुत रीति से चलाइए। ஆண்டவரே, இந்த தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். हमारे देश के लिए இந்த प्रार्थना மகாராஷ்டிரா करते हैं। மாநிலத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். महाराष्ट्र के लिए இந்த प्रार्थना தானா करते हैं। மாவட்டத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ताना शहर के लिए இந்த प्रार्थना கொரோனா करते வைரஸ் हैं। முற்றிலுமாக அழியட்டும் ஐயா. कोरोना वायरस पूरी तरह से नष्ट இந்த தேசத்துல कीजिए। விடுதலை தாங்க. देश को छुटकारा இந்த दीजिए। தேசத்துல ஒரு எழுப்புதலை கட்டளையிடுங்க ஐயா. हमारे देश में बड़ा बेदारी இந்த மாநிலத்திலே दीजिए। பெரிய எழுப்புதலை கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரே. हमारे राज्य में बड़ा बेदारी दीजिए। ஜனங்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். लोग भी सुरक्षित रहे। எல்லாம் ரட்சிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. सभी लोगों को उद्धार உம்மை कीजिए। அறிந்து கொள்ளணும் ஆண்டவரே. आपको सब लोग जानना है। அப்படிப்பட்டதான நாட்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். कोई दिन को हम इंतजार में உம்முடைய हैं। ராஜ்யம் आपका இந்த राज्य பூமியில கடந்து வரும்படியாக நாங்கள் इस ஜெபிக்கிறோம். पृथ्वी पर हो இந்த जाए। ஜெபத்தை கேட்டீர் நன்றி. प्रार्थना सुनाए அற்புதம் धन्यवाद। செய்து விட்டீர் நன்றி. अद्भुत काम किए धन्यवाद। உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. बड़े नाम की महिमा हो। புதிய மாசத்துல नए महीने में நல்ல வாக்குத்தத்தங்களோடு பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். अच्छा प्रतिज्ञा वचन से बात कीजिए। எல்லாரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. हमारे बच्चों को रक्षित சபை कीजिए। ஆசீர்வதிங்க. कलीसिया को आशीष दीजिए। லாக்டவுன் முடிந்து ये लॉकडाउन खत्म हो அநேக பிள்ளைகளை சபைகள் கொண்டு வரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். अनेक लोगों को कलीसिया में ले आइए। சபையெல்லாம் திறக்கப்படட்டும். जल्दी से कलीसिया खुल நீ जाए। அப்படியே செய்வீராக. आप ऐसे ही कीजिए। இயேசுவின் ஜெபம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। ஆமென். आमेन। நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर. ये मेरे मन उसको पवित्र नाम को धन्य कर. ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर। उसने जो सारे उपकार को कभी ना भूलना. आमेन. நம்முடைய கர்த்தர் இயேசுவின் கிருபையும் और परमेश्वर का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्यार, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा की सहभागिता நம்மோடு கூட हमारे साथ உலகத்தில் பரிசுத்தவான்களோடு கூட संसार के सारे पवित्र लोग के என்றென்றைக்கும் साथ இருப்பதாக. हमेशा रहे। ஆமென். ஆமென். அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। God bless you. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க.